success. Students coming from rural areas of different parts of Bihar and having humble backgrounds have also achieved remarkable achievements at SIMAJ. At SIMAJ, thousands of success stories have been written by us. It is evident from the success of SIMAJ alumni who are spread not only all over India, but some of them have also been able to hoist the flag of success in foreign countries. During the 3 years of study at SIMAJ, the life of a student is full of learning, improvement, achievements, and fun. Our students have not only been qualifying with flying colors, but also been achieving the position of university topper and winning gold medals. Yes, since inception, CIMAJians have been university toppers. Every year, none other than but our students have been winning the prestigious title of university toppers and have been getting gold medals. And CIMAJians have not only been academically excellent, but also won many prizes and awards in several competitions conducted on national level. Whether winning the prize on national level and by Technogian in association with ESEL of IIT Delhi, or winning during Spardha, a national sports competition organized by IIT BHU at Varanasi, in which participants from academic institutions of national repute from all over the country actively participate. CIMAJians have proved their talent on each and every platform. During pursuing the university course at CIMAJ, students not only improve academically, but also a number of extracurricular activities conducted in the college help them in improving their knowledge, confidence, communication skills, and personality. As a result, overall growth is seen in the students and in their personality. And that's the reason applause for college in speech, debate, drama, dance, singing, and paintings, inter-college or national level competitions. Students have been offered campus placement through the campus placement program at CIMAJ. Thousands of students have been offered campus placements through the campus placement program at CIMAJ. Today, CIMAJians are spread all over India, working in blue chip companies of international repute, namely Wipro, TCS, HP, Accenture, ICICI Bank, ITC, Carby, and many others. 612 CIMAJians placements in Wipro, 220 CIMAJians placements in TCS, and 374 CIMAJians placement in ICICI Bank are just some of the numbers which tells our success stories. All these CIMAJians are progressing by leaps and bounds everywhere and leading a successful life. They have turned into self-dependent professionals and become a source of inspiration for many other students to follow. And the best part is, it all started at CIMAJ. We wish them good luck and invite you to be a part of it. Maybe you are the next to write another success story at CIMAJ. Be a part of the legacy of CIMAJ. Apply it now. Good afternoon, all of you. I welcome everybody on this various webinar and we'll be starting things in a couple of minutes. There are students those who are not trying the audio. I expect everybody to please switch on your connect your audio. Those who are not connected, you will not be able to listen to me. Please read the message that is being provided written here on the screen. Please follow the on-screen message. You have to connect your audio, join audio. Those who have not connected so far, the message has been sent to them. Alright, so normally we start this particular program. This is a very important question. और सबसे पहले मैं उन लोगों से थोड़ा बात करूँ, those who have joined us, there are some criteria to attend this particular session. This is going to be an academic session. ये एक academic session है, it is equivalent to like attending a class in a college. और इसे आप एक class की तरह से समझिए. So I expect every student to sit properly, switch on their cameras, use them. आप लोग अपने कैमरास को म्यूट कर लीजिए और कैमरास को ऑन कर लीजिए और माइक्रोफोन को म्यूट रखेंगे आप लोग and sit properly, straight, with the backbone straight. I can see some people lying on their bed. अगर आप लोग बेड पे बैठे हैं तो आप आराम से और सीधे से बैठ जाइए, बैकबोन को स्ट्रेट करके. Don't lie on the bed. That is the first thing to be taken care of. This is going to be an interactive session.
wherein the director of Siemens Group of Institutions, Professor Neeraj Agrawal, will be guiding you, will be doing the counseling, will be letting you know about the courses. Because आप लोगों ने इंटरमीडिएट का कोर्स अभी किया है और आप में से कुछ बच्चे ग्रेजुएशन कर करके इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो व्हाट आफ्टर इट, इसके बाद क्या होगा? What are the things which you are supposed to do now? अब आपको आगे क्या करना होगा? Which way? What is the way forward now? आगे क्या करें? कौन सा कोर्स लेना ठीक होगा? Which course is going to be better for you? क्या एक ही कोर्स है ऐसा जो सबके लिए ठीक हो जाएगा, या सबके लिए रुचि के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से, as per their talent and as per their knowledge, उनके हिसाब से अलग अलग कोर्सेज हो सकता है? What are the courses available? What are the options available for them? किस तरह के ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल है इंटरमीडिएट के बाद या ग्रेजुएशन के बाद? आज हम उनके बारे में बात करेंगे, एंड वी विल आल्सो टॉक अबाउट द करियर ट्रैक. वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट द कोर्स, दैट व्हिच कोर्स इज बेटर आफ्टर इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन. वी आर आल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट योर करियर. हम आपके करियर के बारे में भी बात करने जा रहे हैं, कैसे आप एक अच्छे करियर की शुरुआत करेंगे. बिकॉज Siemens is not only a college. Siemens Group of Institutions are not only a group of colleges wherein you study, but this is also a place from where you start your career. It's like a launch pad. ये एक लॉन्च पैड की तरह होता है. तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा सारे स्टूडेंट से कि वो बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से सेशन को अटेंड करें. सेशन के पहले भाग में सिमेंस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल, जो जाने माने करियर काउंसलर हैं, IIM अहमदाबाद के अलुमनाई हैं. कई बार आपने उनको टीवी में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स वगैरह में उनके कॉलम्स पढ़े होंगे करियर काउंसलिंग से रिलेटेड. वो आपको गाइड करेंगे, कोर्सेज के बारे में बताएंगे. और दूसरे भाग में हम आपके क्वेश्चंस को लेंगे, जिन क्वेश्चंस को, वो सवाल जो आपके अनुत्तरित रह जाएंगे. अगर आपको सेशन अटेंड करने के बाद कहीं पर अगर आपको लगता हो कि कुछ चीजें हैं जो आप जानना चाहेंगे, जो आप पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल आपके अनआंसर्ड रह गए हैं, तो वैसी कंडीशन में हम आपको सवाल पूछने का मौका देंगे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ वी वुड लाइक टू स्टार्ट द सेशन. और मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप सभी लोगों, और अभी हैंड रेज मत करिए, अभी हैंड रेज करने की आवश्यकता नहीं है. दिस इज नॉट द टाइम टू रेज द हैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंड द सेशन. सारे सेशन को अटेंड करिए, क्योंकि कई एक सवाल के आपके जवाब मिल जाएंगे. सनी सिंह, if you are listening to me, be active. Attend the session like an active student. आप अपने हाथ को नीचे कर लीजिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है, which is not needed. और सभी लोग चैट सेक्शन में आप लोग अपना मोबाइल नंबर दे दें. आप शायद इंग्लिश समझ नहीं पा रहे हैं. मैंने कहा अभी आपको हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है. किसी भी कैंडिडेट को आपको सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा, लेकिन सवाल सेशन के बाद, क्योंकि इस सेशन के थ्रू आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे. Behave like an active student, because this is what we are expecting in our students, if they will be smart enough to understand the things which is said over this channel. So without wasting the time, I would like to invite Director sir. He has joined us, Professor Neeraj Agrawal. Thank you so much, Neeraj. Welcome. और नीरज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस सेशन को हम लोग सवाल जवाब के सेशन के रूप में रखें. और आज मैं अपनी बात रखने के बजाय, या मैं अपने मन की बात कहूं, इसके बजाय मैं स्टूडेंट से उनके मन की बात सुनना चाहूंगा, और साथ ही साथ आपके साथ में बात करूं, ताकि हम लोग मिल करके जो बातचीत करें, वो बातचीत के माध्यम से बच्चों को जो है उनको भी लाभ मिले. और मैं साथ में मेघा मैम को भी इनवाइट कर रहा हूं कि वे भी इस बातचीत में जुड़े. और छात्रों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने जितने भी प्रश्न उनके दिमाग में हो सकते हैं, आप अभी अपनी उम्र के इस दौर में हैं, आपके सामने आपका पूरा करियर है, आपके सामने आपकी पूरा भविष्य है. और ये भविष्य क्या होगा, कैसा होगा, सुनहरा होगा, अच्छा होगा, सफलतापूर्ण होगा, आप अपना नाम करेंगे, आप अच्छी आमदनी करेंगे, आपके सहयोग से, आपके योगदान से आपका परिवार तरक्की करेगा, समाज में आपकी पहचान बनेगी, और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बनेगी, और आपके कारण आपके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी. ये होगा. या कल को आपको लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, या कल को लोग आपसे लगातार पूछते रहेंगे क्या हुआ तुम्हारा, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, और तुम्हारे पास देने के लिए कोई बेहतर जवाब नहीं होगा. तो ये क्या परिस्थिति होने वाली है, ये सब कुछ अभी निर्भर करेगा. ये जो अगले 3 वर्ष हैं, ये अगले 3 वर्ष तुम्हारे भविष्य के 50 वर्षों का निर्णय करेंगे. ये 3 वर्ष तुम गवा दो और आगे के 50 वर्ष सुनहरे हो जाए, ऐसा नहीं होगा. इसलिए तुमको इन 3 वर्ष, कई बार छात्र जो है वो बोलते 3 मिनट में हम निर्णय कर लेंगे अपने 3 साल का. अरे बेटा, तुम ये अपने 3 साल का निर्णय 3 मिनट में नहीं कर सकते हो. तुमको
उनको इसके लिए आज इस वेबिनार में जो हम लोग जिन प्रश्नों को उठा रहे हैं, और यही मेरा काम है, जितने छात्र आज यहाँ जुड़े हैं सबको मैं बता दूं, मैं कुछ देख पा रहा हूँ कुछ बच्चों को जो शायद पहले भी किसी वेबिनार में जुड़े होंगे। तो बच्चे, मेरा यही काम है, मुझे यही काम करने में आनंद आता है कि जहां मैं बच्चों को उनके करियर के लिए जागरूक करूं, उनको मैं प्रेरित करूं, उनको मैं मोटिवेट करूं कि वो अपना करियर बनाने के लिए वो अपने करियर में कुछ आगे बढ़े, वो कुछ निर्णय लें, और उन निर्णय को लेकर के वो जहां आज रुके हुए हैं, वो जिस जगह पर हैं, उस जगह से कई गुना आगे वो पहुंच सके और वो मजबूत बने, वो ताकतवर बने। तो आप सब छात्रों को इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अपने प्रश्न आप बिंदास चैट बॉक्स में डालो। आप सब लोग चैट में अपने प्रश्नों को डालो। आप सब लोग जो जो प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं, हम पहला प्रेफरेंस, पहली तवज्जो छात्रों के प्रश्न को देंगे। लेकिन साथ ही साथ नीरज पोद्दार सर, चूंकि छात्रों से लगातार उनकी बातचीत होती है, वे कॉलेज के डीन हैं और बहुत ही लोकप्रिय शिक्षक हैं सिमेंट संस्थान के, और सिमेंट संस्थान में जितने नए छात्र आते हैं वे सभी छात्र नीरज पोद्दार सर से बहुत ही घुल मिल जाते हैं, उनसे अपनी बातचीत करते हैं, उनसे अपनी दिल की बातों को साझा करते हैं। मेघा मैम एडमिशन विभाग को भी देखती हैं और साथ ही साथ एकेडमिक हमारे रूटीन्स को देखती हैं, किस तरीके से क्लासेस जो है वो प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही है, इन बातों को देखती है। और छात्रों को और विशेषकर छात्राओं को कभी कोई कठिनाई अगर हो तो उनके 1 पॉइंट सोल्यूशन मेघा मैम होती है, जो कि उनको समाधान देने के लिए वो सबसे आगे होती है। तो आप लोग भी अब बातों को रखें और हम लोग बातचीत का फॉर्मेट आज रखें। और मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूँ कि कई सारे सवाल बच्चों ने चैट बॉक्स में डाल भी दिए हैं, तो हम लोग So before we proceed further, sir, can we have it live on FB, please? Sure. So give me a moment. Because हमारे पास काफी सारे स्टूडेंट्स का आ रहा है that वो Zoom पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लाइव सेशन देख पाएंगे एटलीस्ट। Anshad, you are expected to put on the clothes properly. Anshad, आप एक शर्ट पहन करके एक सेशन को अटेंड करिए, don't take it lightly or casual. In the meanwhile, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज आप अपना मोबाइल नंबर्स चैट पे भेज दें। अपना मोबाइल नंबर और आपके जो भी सवाल है, जो आपके जहन में है, जो आप पूछना चाह रहे हैं, आप उन क्वेश्चन को इसमें भेज दें। I think there is some problem. I'm not able to make it live. I'm trying it on YouTube now. All right, sir. Just a moment. Sorry, you're not audible. Ma'am, can you get my voice? Yes, I can. But मैं ये चाहूंगा कि जब तक ये लाइव हो रहा है तब तक आप कम से कम बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ना शुरू करें। Sure. So we have the first question that we have is, what is the teaching pedagogy of Simich College? I think it's a very great question. जो भी छात्र ने ये सवाल पूछा है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अंतर रखता है। पेडागोजी वर्ड का मतलब आप में से बहुत कम छात्र जान रहे होंगे। पेडागोजी का मतलब हुआ शिक्षण पद्धति, और हमारे शिक्षण की पद्धति क्या हो, इससे बहुत फर्क पड़ता है। इनफैक्ट आज मैं अपने जो फर्स्ट ईयर के छात्रों से शनिवार को उनका हर सप्ताह में एक क्लास लेता हूँ, और जो मैं वहां पे उनसे बात कर रहा था, आज मेरा टॉपिक था उन बच्चों के साथ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, हाउ टू इंक्रीज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। आप में से जितने भी छात्र जो आज इस वेबिनार में जुड़े हैं, क्या आप जानना चाहते हैं कि अपना कंसंट्रेशन पावर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? जब भी आप कुछ पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई आपको एक बार में समझ में आ जाए, वो आपको याद हो जाए, वो आपको समझ में भी आए और रिटेन भी हो, यानी कि अंडरस्टैंडिंग भी आए और रिटेंशन भी आए। क्या आप ऐसा नहीं चाहते हैं
कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो चीजें आप अपने जीवन में पढ़ते हैं, जो वो आपको उस तरीके से आप रिटेन नहीं कर पाते हो, अब जिस तरीके से आप रिटेन, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा जो कंसंट्रेशन की कमी है, जितने लोगों को लगता है कि ये जरूरी है, वो लोग थम्स अप का साइन बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो अगर आप लोग में से सब लोग अगर थम्स अप का साइन बनाते हो, तो मैं फिर उस आज की क्लास के वीडियो को यूट्यूब पर पोस्ट करवा दूंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। लगभग वो 50 मिनट के आसपास की क्लास है, लेकिन उसको आप देखना और आपको ये समझ में आएगा कि आप अपना पावर ऑफ कंसंट्रेशन जो है, कि कभी भी किसी भी विषय में आप कैसे अपने पावर ऑफ कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, आप अपने ब्रेन का पूरा पूरा प्रयोग कैसे कर सकते हैं। हमारा शरीर, हमारा जो ब्रेन है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। और अगर आपको अपने ब्रेन के, ये जो लोग भी हैंड रेस किए हुए हैं, वो लोग अपना हैंड्स डाउन कर ले सारे लोग, या फिर पदार्थ से आप उनका हैंड्स डाउन कर दीजिए। आप अपने ब्रेन के दोनों पार्ट को, यानी कि लेफ्ट ब्रेन को और राइट ब्रेन को, दोनों का पूरा पूरा इस्तेमाल कर सके। और जब कभी भी आप पढ़ाई में सपोजिटली आप अपने लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हो और राइट ब्रेन जो है वो डाइवर्ट हो रखा है, तो आपका कंसंट्रेशन कभी नहीं हो पाएगा। तो कंसंट्रेशन को लाया कैसे जाता है, सोर्स ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है, इन चीजों की मैंने आज उस क्लास में बात की थी। मैं उस वीडियो को यूट्यूब पर डलवा दूंगा, आप लोग सब लोग देखना उसको। लेकिन यहाँ पर पेडागोजी की जो बात हो रही है, उस पेडागोजी में मैं कहना चाहूंगा कि छात्र अगर विषयों को केवल सुने नहीं, सब्जेक्ट को केवल सुन करके ना पढ़े, सब्जेक्ट को पढ़ करके, रीडिंग करके वो ना पढ़े, बल्कि सब्जेक्ट को वो देख सके और उसमें वो अपने आप को रख करके देख सके परिस्थितियों में, और वो उसके अंदर में मेंटल टूल्स डेवलप हो स्टूडेंट्स के दिमाग में, जिन टूल्स का प्रयोग करके वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। अंडरस्टैंड माई पॉइंट, आई एम गोइंग टू से वेरी ब्यूटीफुल लाइन ओवर हियर। मैं यहाँ पे बहुत सुंदर और एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहने वाला हूँ। आप में से कुछ लोग प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, आप में से कुछ लोग प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, और वही लोग इस देश के लिए, वही लोग इस राज्य के लिए, वही लोग अपने जिला, अपने मोहल्ला के लिए और अपने परिवार के लिए, वो सारे लोग जो होंगे वो लोग एसेट होंगे, जो लोग प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे। और जो प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनेंगे, वो लोग देश के लिए, परिवार के लिए, मोहल्ला के लिए, राज्य के लिए, वो लोग खुद प्रॉब्लम बन जाएंगे, वो प्रॉब्लम बन जाएंगे। जो लोग प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनेंगे, वो लोग खुद प्रॉब्लम बन जाएंगे। वो अपनी जॉब डिमांड करेंगे, वो अपने लिए रोजगार की मांग करते रहेंगे, वो अपने लिए आमदनी की मांग करते रहेंगे, वो अपने लिए भोजन की मांग करते रहेंगे, वो अपने लिए जहां तहां हर जगह डिमांड करते रहेंगे, कमांड नहीं कर पाएंगे। तुम लोग को क्या चाहिए? विकास कुमार, राजीव कुमार, अंकित, आप बताओ, आपको अपने जीवन में डिमांड करने वाला बनना है कि कमांड करने वाला बनना है? What do you want to become in your life? आपको अपने जीवन में डिमांड करने वाला व्यक्ति बनना है, जो रोजगार मांगेगा, जो रोटी मांगेगा, जो मकान मांगेगा, जो कपड़ा मांगेगा, या कमांड करेगा, जो जॉब कमांड करेगा, जो जो रिस्पेक्ट कमांड करेगा, सम्मान जो होता है। कोशिश करते हैं समझ में कि विषयों को छात्र समझे। समझने का मतलब है कि जो मैं सुनता हूं वो मैं भूल जाता हूं। उनको उसको करके देखना है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जब तक आप किसी चीज को सुन रहे हैं, वो अधूरी पढ़ाई है। आपको उस चीज को देखना भी है, और सिर्फ देखना नहीं, रीडिंग करके पढ़ना है।
ये सोचते हैं कि शिक्षक आएंगे, ज्ञान की गंगा बहाएंगे और उस ज्ञान की गंगा में भीग करके सभी लोग ज्ञानवान बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको चीजों को केवल सुनना नहीं है, उसको देखना भी है और उन चीजों को प्रयोग करके, चाहे वो टॉपिक आईटी का हो, मैनेजमेंट का हो, कॉमर्स का हो, आप जब उन चीजों का प्रयोग करते हैं तो वो जो तरीका होता है सीखने का, जो आपको मैंने कहा कि व्हाट आई लिसन आई फॉरगेट, व्हाट आई सी आई रिमेम्बर, बट देन व्हाट आई डू आई गेन दैट स्किल। ठीक है, तो ये आपको चीजों को कर करके सीखना, और यही पेडागोजी हमारी है। जो पेडागोजी का सवाल मैं आपने पूछा था, और इस पेडागोजी में कुछ चीजें और भी शामिल है, जिसमें से जैसे अलग अलग तरह के एकेडमिक इवेंट्स कराना। आपको हम किताबें देते हैं, बच्चे तो मैं सबको बता रहा हूं मैं, और उन किताबों की शुरुआत में ही हम लिखते हैं कि इस चैप्टर में आप क्या सीखोगे या इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या कर पाओगे। हर चैप्टर के पहले हम आपको बताते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या कर पाओगे या क्या आपके अंदर एबिलिटी आ जाएगी। तो मेरा कहना है टीचर्स को जो बुक बनाते हैं कि आप चैप्टर के पहले बताइए कि इस चैप्टर को पढ़ करके स्टूडेंट के पास क्या नॉलेज आ जाएगा या क्या कैपेबिलिटी आ जाएगी, क्षमता क्या आ जाएगी। तो नॉलेज या कैपेबिलिटी के टर्म में डिफाइन कर दीजिए उसको। तो दिस इज आवर पेडागोजी। हमारी पेडागोजी में असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि प्रैक्टिकल है हमारी पेडागोजी में। हम अपनी पेडागोजी में स्टूडेंट्स को कई बार जैसे अभी टीचर्स को हम बोलते हैं कि बच्चों को कोई वीडियो दे दीजिए, ये वीडियो तुमको हम दे रहे हैं, लिंक सबको व्हाट्सएप पर वो लिंक दे दिया गया वीडियो का, और उस वीडियो को देख करके फिर उसके ऊपर अगले दिन बच्चों को अपना उसके ऊपर अपनी मंतव्य देना है या अपना रिपोर्ट देना है। या तो हम उनको चाहे तो कह सकते हैं कि हम उनको लिखित में 4 पन्ने का असाइनमेंट बनाने के लिए दे देंगे, लेकिन हम उसके बजाय उसको हमको वीडियो दे दिए। अभी भी हमारे स्टूडेंट्स को हमने असाइनमेंट दिया है, जो बच्चे बना रहे हैं, वो है, उसका टॉपिक है द ग्लोरियस पास्ट बिहार, द ग्लोरियस पास्ट, द डाउनफॉल एंड द रोड अहेड, रिसर्जेंट बिहार, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज। यानी कि जो बिहार हमारा गौरवशाली था, उस पर डाउनफॉल अगर आया, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में, सड़क सुविधा में, बिजली में, हर जगह डाउनफॉल आया, तो वो कैसे आया, क्यों आया, ग्लोरियस कैसा था, और आगे का रास्ता क्या होगा, आगे हमारा बिहार बेहतर कैसा बनेगा। इस पर बच्चों को चार्ट पेपर बेस्ड प्रेजेंटेशन बनाना है। ये अभी हमारे यहाँ चल रहा है। इसको अभी इसका 19 तारीख को इसका फिनाले होगा कंपटीशन में, जिसमें बच्चों को, सब लोग को तैयारी कर रहे हैं बच्चे, सारे बच्चे, कॉलेज के पूरे छात्र। तो ये है पेडागोजी। इस पेडागोजी से बच्चे पढ़ाई करते हैं, और इस तैयारी को कर सके इसके लिए उनको मैं कंटेंट दे रहा हूँ, वीडियो कंटेंट, डॉक्यूमेंट्री कंटेंट, डिस्कशन, डिबेट, बुक्स, इकोनॉमिक सर्वे, उनको मैं सारा कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि बच्चे बेहतर तैयारी कर सके। टीचर्स उनको क्लास में प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि वो अपना प्रेजेंटेशन देने का क्षमता है, और फिर कोई बड़ी वरिष्ठ अधिकारी आएंगे और वो जज के रूप में बच्चों के परफॉर्मेंस को देखेंगे, सुनेंगे और फिर बताएंगे कि किस बच्चे ने को फर्स्ट प्राइज, किसको सेकंड प्राइज, किसको थर्ड प्राइज मिला। तो ये है पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब पढ़ाने का हमारा तरीका। मैनेजमेंट गेम्स करवाना, बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट पे लेके जाना, इंडस्ट्री में लेके जाना, ठीक है, बच्चों को वर्कशॉप्स करवाना, तो अलग अलग तरह के वर्कशॉप्स। जो चीज किताब में लिखी हुई है सिर्फ वही बात नहीं करनी है, जो इंडस्ट्री में हो रहा है, जो मार्केट में हो रहा है, जो देश और दुनिया में हो रहा है, वो बताना। ये है हमारी पेडागोजी। तो ये पेडागोजी को आपको देखना होगा। कभी भी किसी भी कॉलेज में आप जा रहे हैं, उस कॉलेज की पेडागोजी है क्या, वहां पे पढ़ाने का सिद्धांत क्या है। और वैसे कॉलेज में तो जाओ ही मत कभी भी जहां पर ठीक से ढंग से क्लासेस नहीं होती हो। वैसे कॉलेज में कभी मत जाइए जहां पर क्लासेस वगैरह जो है वो टाइमली नहीं होती हो, या जहां पर अटेंडेंस का रूल खड़ा नहीं हो, क्योंकि जहां अटेंडेंस का रूल खड़ा ही नहीं होगा वहां आप एब्सेंट करोगे, और अगर आप एब्सेंट करोगे तो आप एब्सेंट करके अपने करियर में आगे बढ़ना नहीं करोगे। ठीक है, रेगुलर क्लास करके ही आप आगे जा सकते हो। तो जहां पर ये पढ़ाई का वातावरण हो, दिन में रोज 5 क्लासेस होती हो, आपको वैसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। बच्चे, जिंदगी में तुम 2 बार ग्रेजुएशन नहीं करोगे, हो सकता है 2 बार शादी करना पड़ जाए, भगवान न करे वो भी करना पड़े 2 बार, लेकिन ग्रेजुएशन तो एक ही बार करोगे ना। तो जब एक ही बार ग्रेजुएशन करना है तो जो बेस्ट हो वो करो, जो बेस्ट संस्थान में जहाँ तुमको नामांकन मिल सकता है, सिमेस से भी बेहतर संस्थान जो तुमको अगर कोई मिल सके तो
वहां जाओ, वहां से पढ़ो, ऐसे जगह पढ़ो जहाँ रेगुलर क्लासेस हो, जहाँ अच्छे से पढ़ाई हो, जहाँ की। और हम सीमेंस की पेडागोजी को बिहार के छात्रों के लिए बेस्ट क्यों मानते हैं? क्योंकि बिहार का बच्चा बैंगलोर चला गया, पुणे चला गया और सीमेंस से 3 गुना 4 गुना फीस दे रहा है, लेकिन वो पढ़ाई भी अच्छी है वहां की, लेकिन उसके लिए अच्छी नहीं। उसके लिए क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि वो जहां से शुरू कर रहा है, उस पुणे में, बैंगलोर में पढ़ाई वहां से शुरू नहीं हो रही है। उस बच्चे ने बहुत पहले से हिंदी मीडियम से शुरुआत करी है, और उस हिंदी मीडियम के बच्चों को कैसे वो आगे तक ले जाए, ये बैंगलोर और पुणे में नहीं हो पा रहा है। वहाँ 3 गुना 4 गुना फीस दे करके, अच्छा कॉलेज है, सब कुछ अच्छा है, अच्छे टीचर है, लेकिन वो बिहार का छात्र वहां पर अपने हीन भावना में भर जाता है, उसके अंदर में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? तो पेडागोजी की ये होनी चाहिए। आप नीरज पोद्दार सर की क्लास जाके यूट्यूब पर देखिएगा, वो कहाँ से शुरू करते हैं? वो उस बेसिक सेंटेंस से शुरू करते हैं कि यही फॉर्म ऑफ सेंटेंस हो सकता है, यही तुम्हारे जो सेंटेंस के इतने ही प्रकार बन सकते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। और वो तुम जो तुमने जो एकदम बेसिक लेवल से, जहां से हर एक छात्र उंगली पकड़ के चलना सिखाना है, हम ये जान रहे हैं इस बात को, और हम इस जिम्मेवारी को साहस लेने को तैयार है। अगर हम उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाएंगे तो तुम ठोकर खा के गिर जाओगे, और तुमको ठोकर खा के हम गिरने नहीं दे सकते। हम अपने बच्चों का, बच्चे बोलने का मतलब क्या हुआ? मैं बार बार अपना बच्चा बोलता हूँ, क्योंकि मैं गार्जियन की तरह तुम्हारे को अपना बच्चा समझता हूँ। मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं, और मेरे कॉलेज में मेरे हजारों बच्चे हैं, और यहाँ आज इस वेबिनार में भी मेरे कई बच्चे जुड़े हैं। तो तुम लोग सब मेरे बच्चे हो, और हम अपने बच्चों का हाथ पकड़ते हैं। और जब ये बच्चे पास आउट होकर के बड़े बड़े शहरों में चल जाते हैं, पुणे बैंगलोर चले जाते हैं, और उसके बाद दिल्ली एनसीआर में और चेन्नई में रहते हैं, तो वहां से भी हमसे मिलने आते हैं, और हमको वो अपने गार्जियन जैसा स्नेह प्रेम हमेशा देते हैं। जो सम्मान को अपने माता पिता को देते हैं, वही सम्मान मुझे देते हैं, वही सम्मान पोद्दार सर को देते हैं, और यही हमारे जीवन की पूंजी है। इसी से हम लोग का दिल गदगद होता है, और इसी से हम लोग खुश रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पोद्दार सर। पेडागोजी की तो बात हो गई। अब यहाँ पर सवाल एक बच्चे का ये है कि बीबीए कोर्स सिमेज का किस तरीके से बाकी कॉलेजेस के बीबीए कोर्स से डिफरेंस है? बाकी कॉलेजेस के बीबीए कोर्स जो है और सिमेज के बीबीए कोर्स में क्या डिफरेंस है? अच्छा चलो, डिफरेंस पे ही बात करेंगे खाली। जो कुछ भी सेम है वो सेम है। मान लो जो सिलेबस है विश्वविद्यालय का वो हर जगह है, हमारे यहाँ भी है। जो नहीं है मैं उसकी बात करता हूँ। बीबीए में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चों को बोलते हैं कि कैट मैट की कोचिंग तुमको करवाएंगे, रीजनिंग की पढ़ाई हम करवा रहे हैं, हम बच्चों को इंग्लिश की कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, प्रतियोगिता की इंग्लिश, उसकी पढ़ाई करवा रहे हैं, और हम बच्चों को तैयारी करवाते हैं मैथ्स की, ताकि मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग अगर मजबूत रहेगा तो कोई भी एग्जाम निकालोगे, कैट मैट जैट हो या फिर बैंक पीओ। बैंक पीओ के लिए क्या चाहिए तुम लोगों को, बात बताओ। बैंक पीओ के लिए क्या चाहिए? बैंक पीओ के लिए चाहिए तुम्हारा इंग्लिश मजबूत हो, कॉम्प्रिहेंशन मजबूत हो, तुम्हारा रीजनिंग मजबूत हो, तुम्हारा क्वांटिटेटिव मजबूत हो। समझ रहे हो बात को? तो यही चीज चाहिए तुमको कैट मैट में भी। तो बीबीए में सीमेज के स्टूडेंट को हम कैट मैट की कोचिंग, बैंक पीओ की कोचिंग करा रहे हैं। कोई पूरे बिहार में हमें जो कोई इस तरह कोचिंग कराता हो, और हम ये इसलिए कराते हैं क्योंकि इसकी जरूरत है बीबीए के स्टूडेंट को। और हमारे स्टूडेंट बैंक पीओ में, एसबीआई में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, कैनरा बैंक में, यूनियन बैंक में, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, और पंजाब नेशनल बैंक में, सब जगह सफल हुए हमारे बच्चे, सब जगह, सारे बैंकों में। ऐसा कोई सरकारी क्षेत्र का बैंक नहीं है जहाँ सीमेज के स्टूडेंट नहीं गए। कॉलेज में भी तैयारी करा रहे हैं, और ये हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि बच्चा को अगर कहीं कोचिंग जाना पड़ जाए तो कोचिंग का टाइमिंग और कॉलेज का टाइमिंग ये आपस में गड़बड़ा जाता है। फिर बच्चा बोलता है कि कोचिंग जाएंगे, कॉलेज जाए। तो मेरा कहना है कि तुमको हम कॉलेज में ही कोचिंग देंगे, ठीक है, ताकि तुम लोग सबको इसकी तैयारी कर सको। ये चीज सीमेज के अलावा कहीं नहीं हो रही है। डिजिटल मार्केटिंग, क्या आज मार्केटिंग जो हो रही है, मार्केटिंग की दुनिया, वो आज बाजार जो फील्ड ऑफ मार्केट था, जो मार्केटिंग का जो तरीका, जो कन्वेंशनल मार्केटिंग का जो तरीका था, कन्वेंशनल ब्रांडिंग, कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग, कन्वेंशनल सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ, डीलर, शॉप्स, ये एक नेटवर्क बना के कंपनियां अपना प्रोडक्ट ग्राहकों तक पहुंचाती थी। कोई भी कंपनी, चाहे कोलगेट अपना मंजन तुम्हारे घर तक पहुंच रहा है,
तो उसका एक मैकेनिज्म था, एक माध्यम था कि किस तरीके से वस्तु जो है, मारुति कंपनी का गाड़ी बिकेगा तो गाड़ी कैसे बिकेगा, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, इसका एक ट्रेडिशनल सिस्टम था। लेकिन आज का सिस्टम बदल गया है। आज बिग बास्केट है, अमेजन है, आज ई कॉमर्स है, आज डिजिटल मार्केटिंग है। आज ब्रांडिंग और मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग जो है वो सिर्फ कन्वेंशनल तरीके से होती हो वो नहीं हो रही है, आज डिजिटल तरीके से हो रही है। आज सोशल मीडिया मार्केटिंग है, गूगल मार्केटिंग है, फेसबुक मार्केटिंग है, आज लिंक्डइन पर मार्केटिंग है। तो क्या इसको पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? और जो छात्र इसको पढ़ रहा है उसकी इंडस्ट्री में डिमांड ज्यादा है। तो जो बीबीए के छात्र हैं उनको मैंने बताया कैट मैट बैंक पीओ की कोचिंग, ठीक है, उनको मैं बताया डिजिटल मार्केटिंग। और एक और सेक्टर जहां पे हमारे बच्चे बहुत सफल हुए वो है स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट। वहां पर बहुत रिक्वायरमेंट आ रही है, वहां म्यूचुअल फंड में डिमांड है, वहां पर इंश्योरेंस कंपनीज में डिमांड है, बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, एक्सिस बैंक में, इंडसइंड बैंक में, यस बैंक में, इनमें हमारे स्टूडेंट्स को बहुत जॉब मिला। एनबीएफसी कंपनियों में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों में, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में, बजाज फाइनेंस में, चोलामंडलम फाइनेंस में, इस तरह की फाइनेंशियल कंपनियों में हमारे बच्चों को बहुत जॉब मिला। तो ये माइक्रो फाइनेंस में, उत्कर्ष स्मॉल जीवन फाइनेंस में, बंधन बैंक में, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक आए, इन सब में, पेटीएम में, इस तरह के जो पेटीएम और ये जो जोमेटो और ये जो बिग बास्केट वगैरह आए हैं, इनमें हमारे बच्चों को जॉब मिला। तो ये आपको, अगर हम जो कोर्सेज जो डिजिटल मार्केटिंग का करवा रहे हैं वो आपको, जब हम सीएसडी का कोर्स करवाते हैं, कस्टमर सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म का कोर्स कराते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स कराते हैं, टैली का, फाइनेंशियल मार्केट्स का कोर्स कराते हैं, स्टॉक मार्केट का, हम आपको कोर्स करवाते हैं टैक्सेशन का, जीएसटी का, इनकम टैक्स का, प्रोविडेंट फंड पीएफ का रिटर्न कैसे फाइल होता है, ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का रिटर्न कैसे फाइल होता है, ग्रेच्युटी के रूल्स क्या होते हैं, लेबर लॉ क्या कहता है, लेबर लॉ का पालन कैसे होता है, कंप्लायंस ऑफिसर अगर आपको बनना है किसी कंपनी में तो आपको क्या क्या चीज आना चाहिए लेबर लॉ के लिए और प्रोविडेंट फंड के लिए, ईएसआई के लिए, और जीएसटी में तो अपने आप में बहुत जॉब कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बीबीए के स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है जो हम करवाते हैं, वो है इंग्लिश कम्युनिकेशन। अगर हम अपने बच्चों को इंग्लिश में बोलना नहीं सिखाएंगे तो वो क्या कर पाएगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम अपने स्टूडेंट्स को इंग्लिश में बोलना सिखाने का कोशिश करते हैं कि कोशिश क्या करते हैं, हमारे बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में बात करने का करना, इंग्लिश में लिखने का, राइटिंग का प्रैक्टिस, इंग्लिश कम्युनिकेशन का प्रैक्टिस, और इंग्लिश सबसे पहले समझना जरूरी है, इंग्लिश को समझने का प्रैक्टिस, फिर इंग्लिश को लिखने का प्रैक्टिस, इंग्लिश को बोलने का प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस करवाना, वो माहौल देना जिस माहौल में बच्चा अंग्रेजी को प्रैक्टिस कर सके। ग्रामर नहीं सिखाना है, ग्रामर सिखा करके तुमको इंग्लिश नहीं बोलवाना है, प्रैक्टिस करवा करके तुमको इंग्लिश बोलवाना है। तो ये है समझ का बीबीए की जो बात कही पुदार सर ने, ये कैसे अलग है। और आई थिंक पुदार सर, मैंने आपके बीबीए कैसे अलग है को लेकर के जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इन चीजों इनके कारण ही हमारा बीबीए, और एक चीज जिसके कारण हमारा बीबीए अलग है वो है प्लेसमेंट। हमारे बच्चों को जो प्लेसमेंट मिला है, मैं दावा करता हूँ आप पूरे बिहार के सारे कॉलेज का प्लेसमेंट जोड़ दीजिए, सारे कॉलेज का प्लेसमेंट का रिकॉर्ड जोड़ के लाइए और उसको टोटल लगाइए उसका, और उसके बाद सिर्फ मेरे ग्रुप का टोटल लगा लीजिए, मेरा टोटल उन सबसे ज्यादा होगा। अगर बिहार में 150 कॉलेज है तो वो 150 कॉलेज का प्लेसमेंट जोड़ दीजिए, अकेले सीमेंस ग्रुप का प्लेसमेंट ज्यादा होगा। ये डंके की चोट पे ये बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास रिकॉर्ड में ऑफर लेटर्स है बच्चों के, मेरे पास कंपनियों के इंटरव्यू के डिटेल है, मेरे पास बच्चों के फेसबुक के रिकॉर्ड है, रियल बच्चे। मैं किसी बच्चे का नाम देकर के फिक्टिशियस नहीं दे दूंगा, वो बच्चे को आप फेसबुक पर खोज लीजिए कि वो बच्चा है, उसके आप देखिए वो कहाँ किस हवाई जहाज में घूम रहा है, किस रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, उसके फोटोग्राफ होंगे फेसबुक पर, वो बच्चा कॉलेज में पढ़ा हुआ है, उसके स्टडी एक्ट में लिखा हुआ होगा सीए, और वर्किंग में लिखा हुआ होगा आईसीआईसीआई बैंक, वर्किंग में लिखा हुआ होगा उज्जीवन बैंक, बंधन बैंक, एयरटेल, रिलायंस जियो, सब जगह जो हाँ हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट,
इसी तरह से अलग अलग कंपनियों में हमारे बच्चे, जेके सीमेंट हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक है। और स्टडिंग है। बीबीए से ही जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है दैट डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप। मैम अगर मैं बीबीए, अब आप लाइन पे थी या नहीं थी मुझे नहीं पता, मैं शायद डिस्कनेक्ट हो गई थी सर। हाँ मैंने डिजिटल मार्केटिंग पे पूरी बात कही है। Okay, और sir. डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, और ना सिर्फ मार्केटिंग, डिजिटल एचआर मैनेजमेंट, डिजिटल हायरिंग, सोशल मीडिया हायरिंग, एचआर का काम भी डिजिटल मीडियम पे हो रहा है। और आज के डेट पे ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि कंप्लीट पेपरलेस ऑफिस का जो कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कि पूरी अकाउंटिंग, स्टॉक मेंटेनेंस और बैक ऑर्डर लेवल, ये सारा कुछ ईआरपी के थ्रू होता है, जिसमें कि सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर सैप है, जर्मनी का सैप सॉफ्टवेयर। तो ये ईआरपी का बैकग्राउंड, ठीक है, जो अकाउंटिंग के क्षेत्र में आता है ईआरपी, जिसमें सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं होती है, स्टॉक अकाउंटिंग भी होगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होगी, और उसके अलावा जितना ईआरपी के प्रैक्टिसेस हैं, तो वो सारी चीजों का एक्सपोजर। और जो आपको एचआर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिजिटली मैनेज करना, हायरिंग का काम डिजिटली करना, सोशल मीडिया के थ्रू करना, और मार्केटिंग तो खैर डिजिटल हो ही रही है, डिजिटल वर्चुअल वर्ल्ड में मार्केटिंग हो रही है, उसको मैंने आपको बताया। लेकिन हाँ, मार्केटिंग के साथ साथ एचआर और फाइनेंस में भी डिजिटली इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपरेशंस के सेगमेंट में, यानी कि प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट की जो पढ़ाई होती थी, वहां पर भी डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर एक रिया कुमारी का क्वेश्चन है दैट इज सिमिज यूजीसी और एआईसीटीई अप्रूव्ड? सिमेज कॉलेज है, और सिमेज कॉलेज जो है वो सिमेज मतलब कुल 4 कॉलेज है सिमेज समूह के अंतर्गत, ठीक है। और ये 4 कॉलेज है, मैं नाम लेता हूँ शुरुआत से। पहला कॉलेज है सिमेज प्रोफेशनल कॉलेज, ठीक है, ये एएन कॉलेज के सामने विवेकानंद मार्ग में स्थित है, ठीक है। और सिमेज प्रोफेशनल कॉलेज में 3 कोर्स कराए जाते हैं, बीबीए का कोर्स, बीसीए का कोर्स और बीकॉम प्रोफेशनल का कोर्स। तो सिमेज प्रोफेशनल कॉलेज आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का मान्यता प्राप्त कॉलेज है, राज्य सरकार का विश्वविद्यालय है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, और उसके तहत हमारा ये कॉलेज है। यानी कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन यूजीसी की मान्यता से ये कॉलेज चल रहा है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को यूजीसी की मान्यता है और कॉलेज की मान्यता विश्वविद्यालय देता है। तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन सिमेज प्रोफेशनल कॉलेज, एएन कॉलेज के सामने विवेकानंद मार्ग में, जहां पर बीबीए, बीसीए और बीएससी-आईटी 3 कोर्स होते हैं। इसके अलावा हमारे 3 कॉलेज और हैं, ठीक है, वो है कैटलिस्ट कॉलेज, ये पाटलिपुत्र में है, ये हमारा नया कैटलिस्ट कॉलेज बना है, ये पाटलिपुत्रा में है। और यहाँ पर बीसीए, बीबीए या बीबीएम आप जो भी कहिए, बीबीए और बीबीएम एक ही कोर्स होता है। बीबीए और बीएससी-आईटी ये 3 कोर्स यहाँ पर होते हैं कैटलिस्ट कॉलेज में। ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के तहत है। मगध विश्वविद्यालय से बंटवारा हो गया, गया और क्या नाम है, जहानाबाद और अरवल और औरंगाबाद ये चला गया मगध विश्वविद्यालय में, और नालंदा, नवादा और पटना आ गया पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में। ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय राज्य सरकार का विश्वविद्यालय है, और इस विश्वविद्यालय के अंदर हमारे 3 कॉलेज है, कैटलिस्ट कॉलेज, कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एडवांस ग्लोबल एक्सीलेंस यानी कि सिमेज, और स्वतंत्रता सेनानी शंकर लाल अग्रवाल प्रबंधन एवं तकनीकी महाविद्यालय SSAPTM। तो ये 3 कॉलेज हुए, ये तीनों कॉलेज हैं हमारे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में, और इन तीनों कॉलेज में सिर्फ 3 ही कोर्स होते हैं, बीबीए या बीबीएम कह लीजिए उसको, बीसीए और बीएससी-आईटी। क्लियर हो गया आपको? और ये सभी जो कोर्सेज हैं ये यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, और एआईसीटी से अगर मैं मान्यता लेना चाहूं तो मैं ले नहीं सकता हूं, क्योंकि बीबीए की मान्यता, बीसीए की मान्यता, बीएससी-आईटी की मान्यता, बीकॉम की मान्यता एआईसीटी नहीं देखती है। जैसे कि मेडिकल काउंसिल से मैं बीबीए की मान्यता नहीं ले सकता हूं, आयुर्वेदिक काउंसिल से मैं बीबीए की मान्यता नहीं ले सकता हूं, क्योंकि ये कोर्स उसके दायरे में नहीं आता है। एमबीए का कोर्स और एमसीए का कोर्स एआईसीटी के दायरे में आता है, लेकिन बीबीए और बीसीए का कोर्स एआईसीटी के दायरे में नहीं आता है। लेकिन सिमेज में
पीजीडीएम का कोर्स संचालित होता है। पीजीडीएम जो कि एमबीए के बराबर होता है, एक ही है, पीजीडीएम और एमबीए एक ही चीज है। और वो पीजीडीएम का कोर्स जो है वो एआईसीटी से मान्यता प्राप्त है, वो एआईसीटी मान्यता प्राप्त कोर्स है। और उस कोर्स को मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा विभाग, जिसके नए मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी बने हैं, उससे भी मान्यता प्राप्त है। और वो कोर्स जो है वो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन आईमा का कोर्स है। वो कोई लोकल यूनिवर्सिटी का कोर्स नहीं है, वो राष्ट्रीय संस्था, केंद्र सरकार की संस्था आईमा का कोर्स, एआईएमए आईमा, जो कि मैट का एग्जाम कराती है, उसका कोर्स है। और वो एआईसीटी से मान्यता प्राप्त है। और बीबीए बीसीए में एआईसीटी की मान्यता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मेडिकल काउंसिल की, बार काउंसिल की मान्यता लॉ के कोर्स के लिए होगी, इनका कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यूजीसी की मान्यता चाहिए, और यूजीसी की मान्यता सीमेज के सभी कॉलेज को है, क्योंकि सीमेज के सभी कॉलेज, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 3 कॉलेज हैं और तीनों यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत है। और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में हमारा एक कॉलेज है, सीमेज प्रोफेशनल कॉलेज, और तो वह भी यूजीसी की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है। और ये चारों जो कॉलेज हैं, ये बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सीमेज समूह के कॉलेजों को मान्यता प्रदान अलग से कर रखी है। तो विश्वविद्यालय की भी मान्यता है, राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की भी मान्यता है। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए बिहार राज्य सरकार वित्त निगम जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जारी करती है, जिसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं और आपकी फीस सरकार पेमेंट करती है, उसकी मान्यता भी सीमेज के इन चारों कॉलेजों को है। यानी कि पढ़ेंगे आप, पढ़ाई आप करेंगे, फीस सरकार देगी। और आप सरकार को फीस तब दीजिएगा जब आपको नौकरी मिल जाएगी। अपने पास से पैसा आप नहीं देंगे, न पापा से लेके देंगे, आप सिर्फ एडमिशन 5,000 रुपए दे के लेंगे और उसके बाद सरकार में आवेदन देंगे, अप्लाई करेंगे और गवर्नमेंट से अप्लाई करके आपको सरकार आपका फीस भरेगी, सरकार आपके खाते में पैसा देगी, जिसका प्रयोग आप रहने खाने के खर्च के रूप में करेंगे। और सरकार को आप पैसा तब वापस करेंगे कि जब नौकरी मिल जाएगी, सैलरी आएगी, सैलरी में से गवर्नमेंट को देंगे। उसकी भी मान्यता सीमेज को है। बिहार राज्य वित्त जो निगम है, जहां से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन बच्चों को मिलता है, वहां से भी मिलता है। तो जितनी भी वैधानिक मान्यताएं होती हैं, वो सारी वैधानिक मान्यताएं सीमेज समूह के इन चारों संस्थानों में प्राप्त है। बिल्कुल विस्तार से जवाब दिया है। ओके सर, एक सवाल और है कामिनी कुमारी का। कामिनी कुमारी का 2 सवाल है। पहला सवाल मैं ले लेता हूँ आपकी का, और एक तो उसका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सवाल है, थोड़ी देर में बात करता हूँ। उसका अगला सवाल है कामिनी का, जैसे आपने बीसीए कोर्स के बारे में बताया, वैसे ही बीसीए कोर्स सीमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का बाकी कॉलेजेस से कैसे डिफरेंट है। और एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, जिसमें मैं चाहूंगा कि आप डील कर लें। ये सौरभ कुमार का क्वेश्चन है कि एबीयू के बीसीए और बीपीयू के बीसीए दोनों में क्या फर्क है। तो एक तो ये बता दें कि सीमेज का बीसीए किस प्रकार से बाकी कॉलेजेस से डिफरेंट है, और फिर एबीयू और बीपीयू के बीसीए में क्या फर्क है, ये सभी। सर यहाँ एक और ऐड कर देती हूँ, बीसीए एंड बीएससीआईटी में डिफरेंस। अच्छा, कौन सा बेटर है? एक अंशु का भी सवाल है सर, हिंदी मीडियम स्टूडेंट कैसे बीएससीआईटी करेगा? अच्छा, अंशु आई थिंक ये सवाल पूछा है। ठीक है। बहुत जल्द कम खर्च में जॉब पाने के लिए 12th साइंस के बाद क्या करें, ये सवाल पूछा है नटवर ने। मैं इसको भी जवाब दे देता हूँ, ठीक है ना। आवर कोर्स विल बी कंप्लीटेड इन 3 years और इट मे बी लेट, ये अमन पूछ रहा है, ठीक है। ये आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये सब सवाल। मैम, आई एम फ्रॉम बायोलॉजी, सो आई हैव डाउट अबाउट माय एंट्रेंस एग्जाम, ये अंकित का सवाल है, ठीक है। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे पास आया है। क्या है सर, आपके यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया कब शुरू हो रही है? क्योंकि बाकी कॉलेजेस में तो अगस्त में शायद शुरू होगी, आपके यहाँ कब शुरू हो रही है? चलो, तो बहुत ज्यादा सवाल हो गए, तो मैं भूल भी जाऊंगा, ठीक है। तो 1 by 1 शुरू करते हैं, ठीक है। पहला किसी ने पूछा कि कम खर्च में कैसे करें, तो मैं बता चुका हूँ कि 5,000 रुपए से हम लोग व्यवस्था कर दिए हैं कि बच्चा पढ़ाई करे और सरकार फीस देगी। और उसके बाद जब
जॉब मिलेगा तभी वापस करना है, जॉब नहीं मिलेगा अगर तो आपको साल में 2 बार एफिडेविट जमा करना है कि मेरे पास जॉब नहीं है। ये चीज लिखित में सरकार द्वारा अपने अध्यादेश जारी कर दिया गया है, सरकार के ब्रोशर में छप गया है और मुख्यमंत्री का इसका बयान, वीडियो सब कुछ उपलब्ध है। ठीक है, तो ये हो गया। अब पोदार सर ने जो प्रश्न पूछा कि बीसीए कैसे अलग है, तो सिमेज में है तो अलग होगा, और अगर हम अलग नहीं करेंगे तो बिहार में 50,000 बच्चे बीबीए और बीसीए का कोर्स करते हैं। क्या 50,000 बच्चे सफल हो जाते हैं? आप भी लोग जवाब दे दो। क्या 50,000 लोग बिहार में जितने लोग बीबीए बीसीए का कोर्स करते हैं हर कोई सफल हो जाता है? गया में भी बीबीए बीसीए हो रहा है, छपरा में भी हो रहा है, पूर्णिया में भी हो रहा है, कटिहार में भी हो रहा है, किशनगंज में भी हो रहा है। क्या हर जगह से बच्चे पढ़ करके सफल हो जा रहे हैं? डिग्री हासिल कर लेने से सफलता मिल जाती है, डिग्री हासिल करने को मैं सफलता नहीं मानता हूँ। जब तक तुमको अभी इनफैक्ट मैं आपको एक्चुअल बात बताता हूँ, कल मेघा मैम को किसी गार्जियन का फोन आया। मेघा मैम, आपको वो गार्जियन का फोन याद आएगा जिसमें आपको उस गार्जियन ने बताया कि गर्दनी बाग में बच्चे के मामा रहते हैं। ठीक है, हाँ, और उसके मामा जी का क्या, मेघा मैम बताइए मामा जी ने क्या बताया था? मामा जी ने कहा मुझसे कि मैम वो किसी के बहकावे में आ गया है, हाँ, दोस्तों के, और बीसीए कर लिया। हाँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको बीएससी ऑनर्स कराऊं। मैंने कहा कि भाई मामा जी ने सजेशन किया है। अरे नहीं, मामा जी ने क्या बोला था? बीसीए करके क्या बनता है, बीसीए करके क्या बनता है, उन्होंने क्या बोला था? बीसीए करके डेटा एंट्री ऑपरेटर ज्यादा से ज्यादा बन जाएगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर बनेगा। मामा जी ने कह दिया बच्चे के कि बीसीए करके डेटा एंट्री ऑपरेटर बन जाएगा, और मेघा मैम को आ गया गुस्सा। ठीक है, अंकित सुन रहे हो प्रियांशु? ठीक है, मेघा मैम को गुस्सा आ गया कि भाई ये मेरे बीसीए करके सिविल से बच्चा डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं बनता है। मेघा मैम ने 350 बच्चों का उनको स्क्रीनशॉट भेज दिया कि ये सारे बच्चों का रिकॉर्ड देखिए, उनका व्हाट्सएप भर गया 350 इमेजेस से, उनका व्हाट्सएप भर गया, और उसमें हर बच्चे का नाम था, वो किस कंपनी में जॉब कर रहा है, किस पोस्ट पर है, और सीमेंट से पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है। उसको फेसबुक पे जाके चेक कर लीजिए वो बच्चा है कि नहीं है। ठीक है, एक भी बच्चा इन्होंने लिखा उसमें, इसमें से एक भी बच्चा डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं है। वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो सिस्टम इंजीनियर है, वो कंप्यूटर प्रोग्रामर है, वो कंटेंट, मतलब वो एक सीनियर पोस्ट पर है, विप्रो में काम कर रहा है, टीसीएस में काम कर रहा है, वो डिलॉयट में काम कर रहा है, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट में काम कर रहा है, अमेजन में काम कर रहा है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं बना रहे हैं। तो बीसीए करके डेटा एंट्री ऑपरेटर बनाने वाला जो बातचीत है ना, ये बिहार के उन 150 कॉलेज के लिए है जहां पर कोई प्रैक्टिकल नहीं कराया जा रहा है। हम तुमको एंड्रॉइड ऐप मेकिंग पढ़ा रहे हैं, रोबोटिक्स पढ़ा रहे हैं, हम तुमको वेब डेवलपमेंट का पूरा पैकेज करवा रहे हैं, एडवांस जावा करवा रहे हैं, हम तुमको आईआईटी मुंबई का कोर्सेज करवा रहे हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर बनाने के लिए सबसे तुम करवा रहे हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर बनाने के लिए टाइपिंग सीखना होता है, खाली टाइपिंग सीखना होता है, प्रोग्रामिंग नहीं सीखना होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए। ठीक है, तो ये मामा जी को गलतफहमी है, और गलतफहमी की वजह ये है कि बिहार के 150 कॉलेज से बच्चा बीसीए करके मात्र डेटा एंट्री ऑपरेटर बन जाता है, लेकिन सीमेंस का बच्चा टीसीएस में है, विप्रो में है, कैपजेमिनी में है, कॉग्निजेंट में है, एसेंचर में है, आईबीएम में है, एचपी में है, ओरेकल में है। सबका रिकॉर्ड हम दे सकते हैं। जितना नाम मैं लिया हूँ वो विद वर्ड बच्चे का नाम बता सकता हूँ। मिसेस साहे को देख लो, अर्नस्ट एंड यंग में है। ठीक है ना, तो प्रतीक अविनाश को देख लो, एसेंचर में है। ठीक है, तो हमारा बच्चा, ये सब मल्टीनेशनल कंपनी है बच्चे, तुम लोग बहुत से लोग नाम नहीं जानते हो, अमेरिकन कंपनियां हैं, ये वर्ल्ड की सबसे बहुत बड़ी कंपनियां हैं। इनमें जॉब मिलना बहुत बड़ा सपना होता है किसी का, इन कंपनियों में जॉब मिल जाए। आईआईटी के बच्चे इन कंपनियों में जाते हैं, हमारे सारे बच्चे वहां नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे वहां पहुंचे, सीमेंस के बच्चे उसमें गए। ठीक है ना, अभी एक वीडियो डाला गया है कि चंद्र प्रकाश जो है उसको जब टीसीएस में ऑफर मिला था, लेकिन एक नंबर कम होने के कारण ज्वाइन नहीं कर पाया, तो बोला कि सर उसके बाद हम डिसाइड किए कि अब हम इंडियन कंपनी में जाएंगे ही नहीं, खाली मल्टीनेशनल में जाएंगे। तो पहला जॉब लगा एचपी में, दूसरा जॉब लगा उसके 2 साल के बाद उसको ओरेकल में, तीसरा जॉब लगा फिर उसको डेलॉयट में, और डेलॉयट के बाद उसको चौथा जॉब अभी कॉग्निजेंट में काम कर रहा है। उसका इंटरव्यू सीमेंस के यूट्यूब पेज पर डला हुआ है मेरे साथ। ठीक है ना, इंटरव्यू अभी लिए हैं, डाले हैं, तुम लोग जाकर देख लेना। ठीक है ना, जितने लोग यहाँ आज वेबिनार में जुटे हुए हैं, तो अलग तो होगा ही, अलग तो करना ही पड़ेगा। अलग नहीं करेंगे तो जो 50,000 बच्चा बीसीए कर रहा है उसमें तुम्हारे अंदर क्या आएगा?
तो BCA वाले को हम MCA एंट्रेंस की तैयारी कराएंगे, क्योंकि वहाँ BBA में MBA की तैयारी कराएंगे एंट्रेंस की। BCA वाले को हम तैयारी करवाएंगे विप्रो के टेस्ट की, वेस विस्टा की तैयारी, WILP तुम लोग नहीं समझ रहे हो, वो विप्रो का प्रोग्राम होता है ज्वाइनिंग के लिए। WILP की तैयारी करवाएंगे, वेस की तैयारी करवाएंगे, विस्टा की तैयारी करवाएंगे, TCS के NQT नेशनल क्वालिफाइंग टेस्ट, TCS भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके NQT की तैयारी करवाएंगे, TCS नेक्स्ट की तैयारी करवाएंगे, TCS के जो उसके जितने भी इग्नाइट प्रोग्राम TCS का, उसकी तैयारी करवाएंगे ताकि तुमको उसमें जॉब मिल सके। NQT के थ्रू तुमको कम से कम 200-250 कंपनी है, कोक्यूब्स के थ्रू एग्जाम तैयारी करवाना, कोक्यूब्स का एग्जाम निकालो, उसके बाद तो कई कंपनियों में जॉब मिल सकता है, उसकी हम तैयारी करवाएंगे। इसमें रीजनिंग, मैथ, एप्टीट्यूड टेस्ट, प्रोग्रामिंग टेस्ट, ये सारा चीज होता है। तुमको हम जावा के एडवांस पैकेज की तैयारी कराएंगे, एंड्रॉइड ऐप मेकिंग की तैयारी कराएंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग, तुम लोग के कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है, मोबाइल में तुम लोग के स्पेस होता है ना, जीबी, कितना जीबी का मोबाइल है, आने वाले दिनों में मोबाइल में जीबी वगैरह नहीं रहेगा, सब कुछ क्लाउड पर रहेगा, क्लाउड पे शेयरिंग, जरूरत ही नहीं रहेगा, सारा काम क्लाउड पे होगा, सॉफ्टवेयर क्लाउड पे होगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को किस तरह से करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कैसे करना है, AI, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, और उसके अलावा जो कुछ जैसे बिग डेटा है, उसके अलावा जैसे कि तुम्हारा वेब डेवलपमेंट का पैकेज है, PHP है, PHP कोर्स में नहीं है, लेकिन PHP के बिना वेब डेवलपमेंट होगा ही नहीं, वेबसाइट प्रोग्रामिंग होगा ही नहीं, वो हम कराते हैं, अलग से कराते हैं। ASP है, PHP है, HTML में एडवांस वर्जन है, CGI पर्ल है, पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, पाइथन सांप का नाम होता है, वो वाला सांप नहीं, पाइथन प्रोग्रामिंग होती है, बहुत काम की है, वो करवाते हैं। तो ये सब चीजें की जरूरी चीजें हैं। अब हमारे यहाँ का सिलेबस बिहार में तब सुधरेगा, वो बात का बात है, लेकिन हम लोग अपना मैनेजमेंट, और खुदा सर आपके उस सवाल का भी जवाब दूं कि PPU और AQ दोनों का सिलेबस में अंतर है बाबू। PPU का सिलेबस अलग है, AQ का सिलेबस अलग है, PPU का एग्जाम लेवल अलग है, AQ का एग्जाम लेवल अलग है, कोई एग्जाम थोड़ा आसान है, कोई एग्जाम थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। किस बच्चे को कौन सा विश्वविद्यालय का कोर्स सुटेबल है, ये हम लोग इंटरव्यू में जज करते हैं, और जो बच्चे सफल जहां पर हो उसको वो विश्वविद्यालय देते हैं, जो बच्चा कहीं पर विफल हो जाए उसको वो चीज नहीं देते हैं, ठीक है ना। हम जज करते हैं इंटरव्यू में, एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, लेना है तो कौन से विश्वविद्यालय में लेना है। लेकिन जो मैंने तुम लोग को बताया कि एंड्रॉइड ऐप पढ़ाएंगे, रोबोटिक पढ़ाएंगे, जावा पढ़ाएंगे, PHP पढ़ाएंगे, ये PPU को भी पढ़ाएंगे और ये AQ को भी पढ़ाएंगे। AQ के सिलेबस में पाइथन है, PPU के सिलेबस में नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। PPU के बच्चों को भी पाइथन कराएंगे, उसको भी पाइथन का कोर्स कराएंगे। तो सीमेज में हम अपनी तरफ से दोनों PPU यूनिवर्सिटी के छात्र को और AQ यूनिवर्सिटी के छात्र को बराबर कोर्स कराएंगे, लेकिन विश्वविद्यालय का अंतर है। प्लस AQ में क्या है, AQ में सेमेस्टर सिस्टम है, PPU में एनुअल एग्जाम है, ठीक है। तो वो सब हम लोग को देखना है, कौन सा छात्र कितनी क्षमता लेकर के आ रहा है, उसको कौन सा विश्वविद्यालय देना उसके लिए उचित होगा, ये देखना हमारे लिए जरूरी है। हम तुमको उसी रेस में दौड़ाएंगे जिस रेस में तुम सफल हो जाओ, जिस रेस में तुम बीच रास्ते गिर जाओ, उस रेस में दौड़ना में फायदा होगा। बताओ, अल्टीमेटली तो जॉब से मतलब है ना, सक्सेस मिलने से मतलब है, तो वो तुमको कैसे मिलेगा ये हम देखते हैं, ठीक है। और जो बच्चा को बॉक्सिंग में 40 किलो की कैटेगरी में फाइट करना है, उसको 80 किलो वाली कैटेगरी में डाल देंगे तो पहले राउंड में चित हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये हमको देखना पड़ता है कि किस कैटेगरी में तुमको हम लाएं, ठीक है। वो सब कुछ हम लोग टेस्ट लेते हैं, रिटन टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। तुम लोगों को बिहार में इतना रिटन टेस्ट और इंटरव्यू वाला कॉलेज कहीं नहीं होगा, एक बच्चे का रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही एडमिशन होगा, ऐसे एडमिशन सीमेज में होता ही नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों से एक सवाल अधूरा रह गया सर, और जिसके बारे में कोई बच्चे के रिक्वायरमेंट आ रही, 2-3 बच्चों ने उसके बारे में पूछा, और वो ये था कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसे हम अवेल कर सकते हैं, तो मैंने जानकारी चाहिए। और एक क्वेश्चन और इससे जुड़ा हुआ है जो 2-3 बच्चों ने मुझसे पूछा, अंकित फॉर द लास्ट पर्सन वाज दिस क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन ये था कि अंकित ने हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से 10th में 12th किया है, और अब उसे लग रहा है कि सीमेज के लिए या उस जैसे बच्चों के लिए जिन्होंने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है, वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
तो ये उनको डर लगता है। तो ये दो सवाल को आप जवाब चाहेंगे, एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और एक हिंदी मीडियम का। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सबका बन रहा है, ठीक है। मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करूंगा कि उन्होंने एक ऐसी योजना की है जिसका लाभ भविष्य में मिलेगा। अगर आप नौजवानों को एम्पावर करेंगे, अगर आप नौजवानों को क्षमतावान बनाएंगे, तो आने वाला बिहार जो है वो बेहतर बनेगा। नौजवान को तैयार करिए, नौजवान को क्षमतावान बनाइए, उसको बेहतर तकनीकी शिक्षा दीजिए। हमारे बिहार का नौजवान बॉम्बे जाकर के, दिल्ली जाकर के मजदूरी का काम ना करे, गार्ड ना बने। एटीएम के बाहर में गार्ड कौन? तो बिहार का। ऑटो चलाने वाला कौन? तो बिहार का। ये नहीं हो। कंप्यूटर सीख के जाओ और प्रोग्रामर बनो, बिजनेस मैनेजमेंट सीख के जाओ और मैनेजर बनो, लीडर बनो, बिजनेस लीडर बनो। समझ रहे बात को? तो ये क्षमता के साथ जाओ ना। बाहर जाने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। और आने वाले भविष्य में बिहार में एंटरप्रेन्योर बनो, और एंटरप्रेन्योर बन के, अभी पोदार सर ने एक बच्चे का इंटरव्यू लेके डाला, वो बच्चा एंटरप्रेन्योर बना और उसके कंपनी में 12 लोग जॉब कर रहे हैं। तो हमारा सीमेज का स्टूडेंट जब 12 लोग को नौकरी पर रखता है, तब ना बिहार आगे बढ़ता है। जब तुम लोग में से हर बच्चा एंटरप्रेन्योर बन जाए और नए लोगों को रोजगार देगा, तो बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये तुम लोग प्रोग्रामर बनो, मैनेजर बनो, लीडर बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, ठीक है, तब बिहार आगे बढ़ेगा। और ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जाति से कोई मतलब नहीं है। आप किसी जाति के हो, आप ब्राह्मण हैं, आप राजपूत हैं, आप किसी छोटी जाति, ऊंची जाति, आप किसी जाति से हैं, सबका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनेगा। 8 लाख रुपए वार्षिक से कम आमदनी होनी चाहिए। मुझे लगता है जिसकी 8 लाख से ऊपर की सालाना आमदनी है, उसको जरूरत ही नहीं है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। वो पैसे वाला व्यक्ति है, उसको कोई जरूरत नहीं है। उससे कम वाले लोग, मध्यम वर्ग के लोग, लोअर मिडिल के जो लोग और गरीब वर्ग के लोग, उनको जरूरत है। वो लोगों को सबको क्रेडिट कार्ड बन रहा है, बिना जाति के, बिना धर्म के, बिना आय वर्ग के। खेत की जमीन है नहीं है, गारंटर कोई है नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। सबका बस आप बिहार से 12th पास होने चाहिए, बिहार से। या फिर अगर आप बिहार के हैं लेकिन बाउंड्री नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के हैं और देवरिया जाकर के पढ़ लिए, या फिर आप झारखंड में आप चले गए नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के, लेकिन जो सटा हुआ जिला है बिहार से, उसमें आप उस तरफ के झारखंड के जिला से पढ़ लिए, तो उसको भी मान्यता है, ठीक है। बिहार का निवासी अगर है तो बिहार के निवासी को जो बिहार से 12th पास किया है, उसका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनेगा और उसकी पढ़ाई का खर्च सरकार देगी। और उसको सरकार को तभी वापस करना है 3.5 साल के बाद, जब उसको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। अगर नहीं मिलेगी तो उसको पैसा वापस करने की आवश्यकता नहीं है, फ्री में उसकी पढ़ाई हो गई, वो एफिडेविट देता रहेगा। तो ये एक जो आपका सवाल का जवाब दे दिया। दूसरा का सवाल हम भूल गए था। दूसरा सवाल ये था, बच्चे का सवाल था कि हिंदी मीडियम से उसने पढ़ाई की है, क्या इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, सामने के तो अपन का खुद खराब कई छै ना जी। 80% छात्र जो सिमेज में आते हैं वो हिंदी मीडियम के आते हैं, 80% छात्र। तो अंकित, जब बाकी 80% हिंदी के रहे तो तुम भी सीखोगे। दूसरा, मैं सवाल पूछता हूँ इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों से। इंग्लिश मीडियम के छात्र जो कि इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ज्यादातर छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश में लिख तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। क्या मैं सही हूँ कि गलत हूँ? इंग्लिश मीडियम के छात्र बताएंगे कि सर इंग्लिश में लिख तो लेंगे लेकिन इंग्लिश में बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि परीक्षा होती थी लिखने की, परीक्षा में बोलना नहीं था। और आप लोग पढ़ाई किस चीज की करते हैं? आप लोग पढ़ाई करते हैं परीक्षा की। आपकी पूरी पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए होती है, और परीक्षा पास करने के लिए आपको क्या करना था? आपको लिखना था। तो लिखना आप सीख गए लेकिन बोलना आप नहीं सीखे। अगर ऐसा होता कि आधा नंबर बोलने का मिलता तो आप अपना बोलना भी इम्प्रूव करते हो, समझ रहे हैं? तो सिमेज में हम आपको परीक्षा के लिए नहीं पढ़ने के लिए कहते हैं। मैंने कहा ना, आपको वो सब चीजें पढ़नी है जो सिलेबस का पार्ट नहीं। वो जो 4 चैप्टर आप छोड़ते थे ना, एग्जाम में नहीं आएगा, लास्ट का 4 चैप्टर सिमेज में वो छोड़ना नहीं है। सिमेज में पाइथन एग्जाम में आए चाहे नहीं आए पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम लाइफ का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो।
जिंदगी सबसे कड़ा एग्जाम लेती है, विश्वविद्यालय कड़ा एग्जाम नहीं लेता है। मेरी बात तुम लोग समझ रहे हो? तुम लोग सब नौजवान हो बच्चे, तुम लोग सब बड़े हो चुके हो। ऋषभ कुमार, कौशल कुमार, बलिराम कुमार, सौरभ, ठीक है, उज्जवल, सोनाली, आप लोग बड़े हो चुके हैं। आप लोग मेरी बात को समझेंगे कि विश्वविद्यालय कड़ा एग्जाम लेता है कि जिंदगी कड़ा एग्जाम लेती है? बताओ। सबसे कड़ा एग्जाम जो है वो जिंदगी लेती है। तुमको लाइफ के एग्जाम की तैयारी करनी है। तुमको सिर्फ विश्वविद्यालय का एग्जाम तो बतेरे पास करते हैं, बतेरे पास करते हैं। 50,000 बच्चा बिहार से विश्वविद्यालय से BCA करेगा, BBA करेगा, लेकिन जिंदगी का एग्जाम पास नहीं कर पाएगा। लाइफ का एग्जाम ज्यादा टफ है, ठीक है। तो तुमको तो अब उसकी तैयारी करनी है। अब तुम BA करके और MA करके तुम पास हो गए और अब तुमको कोई जिंदगी के एग्जाम में सबक फैलाओगे। इसलिए हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सबको जरूरत है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी पूरी जरूरत पड़ती है। उनको भी इंग्लिश इंप्रूव करना होता है। इंग्लिश मीडियम वालों की भी इंग्लिश कमजोर है, ये मैं देख रहा हूँ, ये मैं जान रहा हूँ। और उनको इंग्लिश को स्किल के रूप में, इंग्लिश नॉलेज के रूप में तो हिंदी मीडियम वालों के पास भी है। कौन तुम लोग में से ऐसा है जो बिना इंग्लिश पढ़े 12th पास किया है? हाँ? क्या तुम लोग में से कोई ऐसा है जिसने 12th में इंग्लिश नहीं पढ़ा है? हाँ? सबका इंग्लिश था, तो सबके पास इंग्लिश का नॉलेज है। क्या नहीं है? स्किल नहीं है, क्षमता नहीं है। तो क्षमता तो देनी पड़ेगी ना, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले हो, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हो। तो इसलिए जहां तक सवाल हिंदी मीडियम का है, हाँ, हमने अपनी शिक्षण पद्धति में कुछ इस तरह के तरीका बनाया है जिस तरीके से हम वहां से शुरू करें जहां पर तुम हो। मतलब हम अगर आगे से शुरुआत करते, तुम यहाँ बैठे हो और हम बहुत आगे से शुरू कर रहे हैं, तो तुम पीछे रह जाओगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और तुम्हारा और मेरे बीच का, टीचर के बीच का गैप बढ़ता जाएगा। तो हमको क्या करना है? तुमको क्या बोले थे? अंगुली पकड़ के चलना है। टीचर्स को हम बोलते हैं, अभी तो कोरोना काल है, लेकिन टीचर्स को हम बोलते हैं हमेशा कि स्टूडेंट के कंधे पे हाथ रखिए। समझ में आया कि नहीं आया, कंधे पे हाथ रख के पूछिए। जब टीचर स्टूडेंट के कंधे पे हाथ रख के पूछता है ना, समझ में आया कि नहीं आया, तो वहां पर बॉन्डिंग बनती है और वहां पर बच्चा बताता है कि सर ये वाले में दिक्कत है। तुम लोग को मेरी ये बात अच्छी लग रही है? अगर तुम लोग को मेरी बात कभी कभी अच्छी लगे तो थम्स अप का साइन बना के दिखाओ, ताकि मेरे को भी तुम लोग को बोलने में उत्साह बने, ठीक है ना। तो ये हम लोग करते हैं सीमेज में, ठीक है। हम बोलते हैं बच्चों को, टीचर्स को, और टीचर्स को हम उनका टाइमिंग बनाते हैं। जब वो अकेले बैठेंगे, टीचर अकेले बैठेंगे और अकेले बैठेंगे और उस अकेले बैठने का टाइमिंग बनेगा और उसमें बच्चा अकेले जाएगा उनके रूम में। क्यों? कई बार बच्चे सबके सामने सवाल पूछने में झिझकते हैं, संकोच होता है। लेकिन अगर संकोच करते रहोगे और सवाल नहीं पूछोगे, तब तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो टीचर अलग से बैठते हैं, जो उनका फ्री टाइम होता है केबिन में, और उस केबिन में बच्चा जा करके उनसे पूछता है सवाल। खुदार सर के पास बच्चा अलग से आता है कई बार सवाल पूछने के लिए। ये वही सवाल क्लास में भी पूछ सकता है, लेकिन वो इसलिए नहीं पूछता है कि सर लड़की लोग के सामने हम पूछेंगे तो लोग सोचेंगे क्या कोई नहीं आता है, तो शर्म करता है, संकोच करता है। तो हम टीचर्स को बोलते हैं कि आपको अकेले में भी उनसे थोड़ा देर समय देना चाहिए बच्चों को, ठीक है। ये हिंदी माध्यम के सवाल का मैंने आपको पूरा जवाब दिया। सवाल बहुत ज्यादा आ गए हैं, हमारा सवाल खत्म हो रहा है ज्यादा, लेकिन मेरे पास भी एक क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है मैम थोड़ा इस क्वेश्चन को अगर देख लें, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ गया। एक बच्चे ने तो पूछा कि क्या आपके यहाँ BCA में विदाउट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिशन हो सकता है, और दूसरा सवाल आ गया कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो मुझे लग रहा है कि एडमिशन प्रोसेस क्लियर करने तो इनके एंट्रेंस एग्जाम के बिना कोई चारा नहीं है, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम भी देना है, इंटरव्यू भी देना है। और अब इस बार एंट्रेंस एग्जाम ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। कॉलेज में आकर के, पटना आके एग्जाम देना है, कॉलेज में आके एग्जाम देना है। मास्क लेकर के आना, सीसी में सैनिटाइजर जेब में लेकर के आना, ठीक है। और हमारे यहाँ पे वैसे भी तुमको सैनिटाइज करेंगे, घुसने के पहले तुमको फुल बॉडी सैनिटाइज करेंगे मशीन से, ठीक है, और तब घुसाएंगे, ठीक है, हर बच्चे को। तो और इतना गैप में बैठाएंगे कि अगर कोई छींक भी दे, एक तो मास्क के अंदर छिकाएगा और उसके बावजूद वो गैप में रहेगा, पूरे गैप से बैठाएंगे सबको, ठीक है। और एक एक बेंच छोड़ छोड़ के बैठाएंगे, ठीक है। और कॉलेज में एग्जाम लेंगे, और एंट्रेंस एग्जाम के बिना किसी को नहीं। एंट्रेंस एग्जाम तुमको इसलिए नहीं है कि तुमको हम वहां पे हटा के फेल कर दें, वो इसलिए है
कि हमको पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कौन सा क्वालिटी है और कौन सा नहीं है, क्या चीज तुमको इम्प्रूव करना है और क्या तुम्हारी ताकत है। सबके पास कुछ ना कुछ ताकत होता है और सबके पास कुछ ना कुछ कमी होता है, ये पता चलना चाहिए ना, ठीक है ना, अपना शुरुआत ठीक से होगा। इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम का मैम आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं था? हाँ जी सर, एक क्वेश्चन मेरे पास ये आ रहा है कि मैं बीसीए करना चाहता हूँ बट 12th में मेरा मैथ्स नहीं था, क्या मैं बीसीए कर सकता हूँ? और अगर मैं बीसीए चुनता हूँ, अगर यूनिवर्सिटी अलाउ करती है, तो क्या मुझे दिक्कत आएगी बीसीए करने में? ये है ना एनर्जी, क्या बीसीए बिना गणित के हो सकता है? क्या लिखा है हाँ, एनर्जी मेरे पास के भी नाम किसी- है। हाँ, ये कई सारे हैं और एक है ये शिवम, शिवम नाम है कि शिवा क्या नाम है? सर सबसे ज्यादा कौन सा कोर्स में प्लेसमेंट मिलती है? ठीक है ना, मिलता है लिखना चाहिए, हिंदी भी ग्रामर गलत है। खैर, तो प्लेसमेंट जो पहले मैथ्स बनता, ठीक है, बीसीए में मैथ्स का होना तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है समझ लो, क्योंकि मैथ्स तुमको लॉजिकल बनाता है। मैथ से तुम लॉजिकल, मैथ को सॉल्व करने के लिए तुमको लॉजिकल होना पड़ेगा। और बीसीए में भी जो है एल्गोरिथम जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लॉजिकल है, प्रोग्रामिंग में इलॉजिकल नहीं हो सकता है। देयर हैज टू बी लॉजिक इन योर कोडिंग, कोडिंग में लॉजिक होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैथमेटिक्स जो होता है वो बहुत काम आता है। लेकिन अगर कोई छात्र ऐसा है जिसका लॉजिक है, मैथ भी ठीक है, लेकिन 12th में मैथ नहीं लिया, अगर उसके एडिशनल पेपर में मैथ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसके एडिशनल पेपर में भी मैथ नहीं है, लेकिन अगर वो बच्चा मैथ में अच्छा है, हमारे एग्जाम में मैथ में अच्छा करता है, तो उस बच्चे को मैं ले सकता हूँ बीसीए में। मेरे पास ऐसा विकल्प है कि उस बच्चे को मैं बीसीए में ले सकता हूँ। कुछ विश्वविद्यालय इस चीज की अनुमति देते हैं और कुछ विश्वविद्यालय इसकी अनुमति नहीं देते हैं, वो उनका कहना है। जैसे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में मैथ होने पर ही वो अलाउ करते हैं, ठीक है, कि उनका या तो बच्चे के मेन पीसीएम होना चाहिए और अगर पीसीबी है तो उसका एडिशनल में मैथ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, जिसको तुलनात्मक रूप से मैं ज्यादा श्रेयस्कर इसलिए मानता हूँ कि सिलेबस उसका बाद में बना है, लेकिन हमारे यहाँ तो सारा सिलेबस एक हो जाता है क्योंकि हम लोग दोनों कोर्स उसमें पूरा पढ़ाते हैं। तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में बिना मैथ्स के भी अलाउ करते हैं, प्रोवाइडेड कि बच्चे के मैथ के एंट्रेंस एग्जाम में वो अच्छा करे। अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट मेरे मैथ के एंट्रेंस एग्जाम में 0 लाता है या अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है, तो मैं उसको बीसीए में अलाउ नहीं करता हूँ, ठीक है ना। तो मैथ वाला क्वेश्चन तो एड्रेस हो गया। अब ये जो शिवम या शिवा जिसका भी ये सवाल है कि सर सबसे ज्यादा कौन सा कोर्स में प्लेसमेंट मिलता है, तो तुम ये चीज जान लो कि तुमको कहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगा। अब तुम कुश्ती में अच्छे हो गए कि बॉक्सिंग में अच्छे हो गए कि बास्केटबॉल में अच्छे हो गए कि क्रिकेट में अच्छे हो गए, तुमको ये ना देखना है कि तुम किस चीज में अच्छे हो गए। ऐसा थोड़ी ना है कि जिस चीज में प्लेसमेंट, हर चीज में प्लेसमेंट है, जिस काम में तुम्हारा मन लगे। देखो एक चीज जान लो, मन लगा के सफल हो सकते हो, मेहनत करके सफल नहीं हो सकते। क्या बोला मैंने? लाइन तुम्हारे दिमाग में रिपीट करी, मन लगा के सफल हो सकते हो, मेहनत करके सफल नहीं हो सकते हो, क्योंकि मेहनत करना हमारी स्वाभाविक प्रकृति नहीं है। मेहनत करना हमारी स्वाभाविक प्रकृति नहीं है, मेहनत करने का हमारा मन नहीं करता है। सचिन तेंदुलकर मन लगने से सफल हुआ कि मेहनत करने से सफल हुआ? कभी कभी मेहनत करना होगा, जिस दिन मन नहीं लग रहा है उस दिन मेहनत करना होगा। लेकिन अगर सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट खेलना मेहनत हो जाए, अगर उसके लिए बचपन से क्रिकेट खेलना मेहनत होता, तो क्या वो तेंदुलकर बनता? नहीं, उसका मन लगता था। जब भी तुम्हारा विषय में मन लगेगा तो मेहनत, तुम अपार मेहनत कर जाओगे, मेहनत का एहसास नहीं होगा। अपार मेहनत करोगे, बेशुमार मेहनत करोगे और मेहनत का एहसास नहीं होगा। मन नहीं लगेगा तो थोड़ी सी मेहनत करने में भी क्या होगा, मन नहीं लग रहा है, थोड़ी सी मेहनत में थक जाओगे, ठीक है। तो इसलिए किस विषय में ज्यादा, कौन से कोर्स में ज्यादा प्लेसमेंट मिलता है, इसके बजाय तुमको कौन सा कोर्स पसंद है यह देखना होगा। हमारे पास तो अभी मात्र तुम समझ लो कि 3 सेक्टर है, 3 सेक्टर मेरे पास जो है।
कंप्यूटर का सेक्टर जिसमें बीसीए और बीएससीआईटी का कोर्स है, और अभी के क्षेत्र में ये कोरोना जो आया है, कोरोना ने अगर किसी एक सेक्टर को बहुत बढ़ावा दिया है, इनफैक्ट 2 सेक्टर को बढ़ावा दिया है कोरोना ने। एक मेडिकल सेक्टर को बढ़ावा दिया है, मेडिकल सेक्टर में डॉक्टरों के यहाँ पर अस्पतालों में और दवा कंपनियों में बहुत ज्यादा काम बढ़ गया है। और दूसरा कोरोना ने बढ़ावा दिया है, कोविड ने इंटरनेट को, आज सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, पढ़ाई ऑनलाइन, मेडिकल जांच ऑनलाइन, एडटेक, मेडटेक, एग्रीटेक, ठीक है। तो हर चीज में टेक्नोलॉजी आ गई है, हर बिजनेस में टेक्नोलॉजी आ गई है। तो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जॉब्स कई गुना बढ़ गए हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह जो आएगा इससे भविष्य में जॉब और बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी एक जॉब प्रोवाइडेड सेक्टर है। मैनेजमेंट के सेक्टर में सारी सेक्टर को रिक्वायरमेंट है, चाहे वो कोई दवाई बनाने वाली कंपनी हो, चाहे वो कोई साबुन तेल बनाने वाली कंपनी हो, चाहे वो कोई फैक्ट्री मशीनरी कैपिटल गुड्स की कंपनी हो, चाहे वो कोई तुम्हारी कोई टीवी फ्रिज बनाने वाली कंपनी हो जहां हमारे बच्चे जॉब करते हैं, मोबाइल बनाने वाली कंपनी हो, हर किसी को, चाहे वो कोई सिम कार्ड बेचने वाला एयरटेल हो, रिलायंस जियो हो, चाहे वो रिटेल स्टोर हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो बैंक हो, सबको बीबीए की और एमबीए की डिमांड होती है, ठीक है। इसलिए जब इकोनॉमी तरक्की करेगी, और तुमको एक बात और बता देते हैं, जितना कोविड में भारत पीछे गया है, जितना कोरोना में भारत पीछे गया है, हमारी अर्थव्यवस्था पीछे गई है, उससे ज्यादा तेज गति से आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और एक भविष्यवाणी मैं डंके की चोट पर और करूंगा कि जो दुनिया में आज अमेरिका राजा है क्या बोलने का मतलब हुआ कि समृद्धि के मामले में दुनिया में सबसे समृद्ध देश अमेरिका है, और पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार रही है कि आने वाले दिनों में चाइना अमेरिका को रिप्लेस करेगा। और अब ये दुनिया यह भी स्वीकार रही है कि उसके आने वाले दिनों में अगले 40 से 50 सालों के अंदर में हर हाल में भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र, सबसे अधिक धनवान राष्ट्र बनेगा। और किसी कार्य में आज से ज्यादा नहीं, आज से 200 वर्ष पूर्व, आज से 250-300 वर्ष पूर्व, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, 250-300 वर्ष पूर्व भारत जो है दुनिया के अकेले 25% से अधिक वेल्थ भारत में था, 25% से अधिक, 1/4 से अधिक कारोबार भारत से था। तो आप समझिए ये छोटा सा देश भारत, लेकिन पूरी दुनिया का यूरोप और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और पूरी दुनिया, चीन, इन सब से भारत आगे था। चीन से तो 1980 में भारत बराबर था, 1980 तक तो चीन और भारत एक बराबर थे। जो अर्थव्यवस्था थी भारत की अर्थव्यवस्था और चीन की अर्थव्यवस्था, वो 1980 तक एक बराबर थी। हम लोग बराबर चल रहे थे, लेकिन फिर चीन ने तेजी से ग्रोथ किया, भारत पीछे रह गया। लेकिन अब जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, इसमें ग्रोथ होना है, और इस ग्रोथ को जो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, आपको खुद प्रॉब्लम नहीं बनना है। आज मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई बोलता है ना कि ना जॉब दूंगा, ये जॉब दूंगा, और लड़के लोग नेताजी के पीछे हो जाते कि नेताजी जॉब देंगे। कोई नेताजी जॉब नहीं दे सकते हैं। तुम अपनी क्षमता को विकास करो, नॉलेज का विकास करो, तुम्हारे को खुद ही जॉब मिलेगा। तुम क्षमता का, नॉलेज का विकास नहीं करोगे, नेताजी का झंडा लेके चलते रहोगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो? चाहे वो दिल्ली में बैठे हुए बड़े वाले नेताजी हो, चाहे बिहार में बैठे छोटे वाले नेताजी हो, जॉब जो क्रिएट होंगे वो तुम्हारी क्षमता के बल पे होंगे, है ना? आई होप आई एम क्लियर। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है, बच्चे का पूछना है कि मैम क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी कॉलेज में? हाँ सॉरी, आपने पहले भी ये सवाल पूछा था कि बिल्कुल, और मेरे पास ये बार बार आ रहा है, क्लासेस कब से होंगी, प्लस ऑनलाइन होंगी कि ऑफलाइन होंगी? 1 जून से सिमेज में फर्स्ट बैच शुरू हो चुकी है। 1 जून वाली बैच जो है, हाँ, उसका आज मतलब मुझे लगता है लगभग 1.5 महीने के आसपास पढ़ाई, 1 महीना 10 दिन का पढ़ाई उसका हो चुका है, ठीक है। जो 1 जून से हमारी पहली बैच ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। दूसरी बैच हमारी मंडे को शुरू हो रही है, इस सोमवार को। सेकेंड बैच 12 तारीख को शुरू हो रही है, ठीक है, ऑफलाइन कोर्स, यानी क्लास में आकर के क्लास करना होगा, क्लास में आकर।
ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन उसको हम यूट्यूब पे डालेंगे, लेकिन उसको क्लास में आना है बच्चे को, अटेंडेंस उसका क्लास में बनेगा 12 तारीख को, ठीक है। और तीसरी बैच के लिए हमारा एग्जाम का डेट निकल चुका है, वो डेट मेगा मैम बता दीजिए। अभी आप लोग दूसरे कॉलेजेस में बिहार में हो सकता है फॉर्म भी नहीं निकला हो, लोग पूछते हैं कब एडमिशन शुरू होगा। एडमिशन शुरू नहीं होगा, क्लास शुरू हो चुका है। एक बैच ऑलरेडी 1 महीना 10 दिन का है और दूसरी बैच मंडे को शुरू हो रही है 12 तारीख से। उसका डेट अनाउंस है, हमारे फेसबुक पे डला हुआ है, यूट्यूब पे डला हुआ है। और तीसरी बैच का जो एग्जाम हो रहा है उस एग्जाम का डेट देखा मैम आप बता दीजिए, मुझे एग्जाम का डेट याद नहीं। यस सर, हमारा जो अगला एंट्रेंस एग्जाम है ये 14 जुलाई को है और ये प्रॉपर ऑफलाइन मोड में होगा, मतलब छात्रों को कैंपस में आना होगा, एग्जाम देना होगा और जो भी छात्र उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करेंगे उसके बाद उनका 1-to-1 राउंड ऑफ इंटरव्यू भी उसी दिन हो जाएगा। पहली प्रेफरेंस दी जाएगी उन छात्र छात्राओं को जो कि पटना के बाहर से होंगे। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 14 तारीख 14 जुलाई दिन नोट कर लीजिए। फॉर्म आप लोग जो लोग सबमिट नहीं किए हैं वो सभी लोग फॉर्म सबमिट करो। लाइफ में कुछ ना कुछ डिसीजन आपको लेना होता है और वो डिसीजन ही आपके लाइफ को टर्निंग पॉइंट बनेंगे। जीवन में उस मोड़ पर आपको जो डिसीजन लेना होगा। और कॉलेज में आओ, मैं तो कहूंगा कि आप ऑनलाइन फॉर्म मत कर दो, आप ऑनलाइन फॉर्म मत कर दो, आप कॉलेज में आओ और पटना आ करके कॉलेज को देखो। और जो नीरज अग्रवाल सर ने तुमको आज मैंने जो तुमको कहा है वो चीज तुमको कॉलेज में दिखाई पड़े, तुमको अलग लगे, तुम्हारे जिले के गांव के कॉलेज से सीमेज तुमको अलग लगे, तब तुम फॉर्म खरीदना और तैयारी करना और तैयारी के साथ 14 तारीख का एग्जाम देना, ठीक है। और उसके बाद तुम अपने आप एडमिशन लोगे, ठीक है। पहले आओ, देखो, समझो और यूट्यूब पे जाओ और सीमेज की सैकड़ों हजारों क्लासेस डली हुई है यूट्यूब पर। प्रतिदिन वहां पर तुमको वहां पर दुनिया भर की क्लासेस दी जाती है। देखो कैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कैसे प्रेम से पढ़ाया जा रहा है और कैसे बच्चे, तुमको समझ में नहीं आएगा क्लास, बता दे रहे हैं। क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि तुमको अगर आज अचानक से किसी बीच क्लास में बैठा देंगे जो क्लास बहुत आगे चल चुकी है तो तुम समझ जाओगे, नहीं समझ पाओगे। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट है वो समझ रहे हैं क्योंकि वो पहली क्लास से पढ़ रहे हैं। अगर आज मुझे कोई एविएशन के क्लास के तीसरे महीने के बैच में बैठा दे तो मैं एविएशन टेक्नोलॉजी समझ नहीं जाऊंगा कि इंजन कैसे वर्क करता है एविएशन का। लेकिन अगर मैं पहली क्लास से पढ़ूंगा तो समझूंगा। लेकिन तुमको वहां वीडियो देख के ये जरूर समझ में आ जाएगा कि पढ़ाने का तरीका क्या है। टॉपिक तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुमने शुरू से टॉपिक को नहीं कवर किया है। अगर सी प्रोग्रामिंग है, जावा प्रोग्रामिंग है, फर्स्ट डे से अगर तुम पूरा देखोगे वो भी तुमको समझ में आ जाएगा और वहां पे तुम टॉपिक भी समझ जाओगे, समझ गए। तो तुमको, और हम तो अकेले कॉलेज है जहां पर पूरी पढ़ाई जो है वो हम कहते हैं पब्लिक को देख लो। एडमिशन जो हमारे यहाँ पर तुमको किसी भी कॉलेज में कैसा पढ़ाई होता है नहीं होता है देखने का कोई माध्यम है? उस कॉलेज की पढ़ाई को तुम देख सकते हो? कहीं का भी तुम नहीं देख सकते हो। सीमेज ऐसा कॉलेज है बिहार में जिसकी पूरी पढ़ाई हम पब्लिक के लिए ऑनलाइन करती है और बहुत सारा बच्चा हम लोग मैसेज भेजता है। पीछे हम लोगों ने उसको कुछ दिन के लिए उसको कर दिया था मेंबर ओनली मोड में। तो मेरे पास पटना के दूसरे सरकारी कॉलेजेस, किसी का भी नाम नहीं लेंगे, बहुत सारे बड़े बड़े पटना के सरकारी कॉलेज के छात्रों का मैसेज आ गया कि सर प्लीज सीमेज की जो क्लास आप लोग ऑनलाइन में डालते हैं उसको डालिए क्योंकि हम लोग के कॉलेज में उस पढ़ाई उस तरह से कुछ भी कोई क्लास उतना नहीं होता है। तो हम लोग सीमेज का ही वीडियो क्लास देख करके पढ़ते हैं। तो मुझे अब अच्छा लगता है क्लास को डालने में कि किसी का भला ना हो रहा है। अब किसका भला हो रहा है? अपने बिहार के ना बच्चों का भला हो रहा है जो दूसरे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ ढंग से क्लास नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनको बहुत कुछ ऐसा भी मिलेगा जो ऑनलाइन नहीं मिल पाएगा। ऑनलाइन वाले को कुछ ना कुछ तो कमी रह ही ना जाएगा, उसके कंधे पर थोड़ी ना हाथ रखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, जो छात्र कॉलेज विजिट करना चाहते हैं उनको ये बताना है कि संडे को भी कॉलेज खुला रहता है। यदि वो किसी प्रकार की इंक्वायरी के लिए अगर कॉलेज आना चाहें तो वो आ सकते हैं। ये गोलू कुमार का सवाल है और सौरभ कह रहे हैं मेरा क्लास 12 जुलाई को स्टार्ट होगा। बिल्कुल 12 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका
एडमिशन का चयन हो चुका है। तो सर व्हाट अबाउट कैंपस एंड एकेडमिक स्पोर्ट्स? तो तुम लोग को मैं कैंपस के बारे में दिखाता हूँ सिमज का एक चीज जो कि बहुत हो सकता है तुम लोग को अच्छा लगे, ठीक है? जिस पर अभी ये सिमज का एक कैंपस है जो कि पटना बाईपास रोड पे बन रहा है। शायद तुम लोग को देख करके ये अच्छा लगेगा, ठीक है? एक कैंपस और सिमज का मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये जो मैं आपको भी बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, ये बिल्डिंग दिख रही है आप लोगों को क्या? इस भवन का निर्माण कार्य ऑलरेडी बेसमेंट का पूरा हो चुका है। अब इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो बनना शुरू हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये वाला जो हमारा कैंपस है, ये कैंपस 1 साल के समय सीमा के अंतर्गत बन जाएगा, जैसा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इस कंपनी को हमने बात की, कंपनी को ये काम दिया है। और ये पाटलिपुत्र में पटना के पीएनएम मॉल के पीछे बहुत ही मतलब शहर के एकदम बीचों बीच में ये हमारा कैंपस बन रहा है। और इस कैंपस की झलक को देख करके हो सकता है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। और ये अपने आप में बिहार में इस तरह का शायद ही कोई संस्थान आपने देखा होगा, जो कि आईआईटी कानपुर का डिजाइन जिस आर्किटेक्ट ने बनाया, वहां पर जो अभी ऑडिटोरियम बना है, उन्हीं आर्किटेक्ट से हमने इस डिजाइनिंग को कराया, ताकि और इसमें हमने उन चीजों का ख्याल रखा जिसके साथ कैंपस के अंदर में बच्चों का ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन हो, ज्यादा से ज्यादा ऑफ द क्लासरूम, यानी क्लासरूम के बाहर में कैसे लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो और आपस में इंटरेक्शन हो, आइडियाज का एक्सचेंज हो। ये लाइब्रेरी है जहाँ पर कैफेटेरिया लाइब्रेरी के अंदर ही होगी, ठीक है? और ये जो सीढ़ियां देख रहे हैं, ये सीढ़ियां इस तरीके से बनाई गई है कि यहाँ पर बैठ करके कोई मूवी दिखानी हो तो सामने की वॉल पर वो मूवी देख सके आप, ठीक है? मतलब ये पूरा का पूरा डिजाइन जो है ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिजाइन। और बिहार में तो खैर ऐसा देश में ही बहुत रेयर कोई ऐसा किसी ने बनाया होगा, जो मेरा सपनों का संस्थान जो मैं बना रहा हूँ। ये लैब आप देख रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से इसमें आपको सारी सुविधाओं को देखने को मिलेगा। ये एक सीढ़ी लगातार सीधी एकदम स्ट्रेट जाती जाएगी ऊपर, इसमें कहीं सीढ़ी में बोला ही नहीं है, ये स्ट्रेट ये सीढ़ी ऊपर जाती जाएगी, ठीक है? और यहाँ पर ये फिर वही ये सिटिंग एरिया है, जिस सिटिंग एरिया पे बैठकर सामने की वॉल पर आप कुछ भी प्रोजेक्शन देख सकते हैं। और ये यहाँ पर इंटरेक्शंस के लिए, आइडियाज एक्सचेंज के लिए ये एक बैठ करके बच्चों का एक एरिया बनेगा। और ये जो पूरा का पूरा अभी जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका हर फ्लोर लेयर बाय लेयर है, यानी कि पहला लेयर यहाँ, दूसरा लेयर यहाँ, तीसरा लेयर यहाँ, यानी हर लेयर की बालकोनी पे जब खड़ा होगा लोग तो वो ग्राउंड फ्लोर के लोगों को देख पाएंगे। यानी सबसे नीचे खड़े हो जाओ तो हर लेयर के लोग जो है वो पीछे पीछे दिखाई पड़ेंगे, ताकि अगर नीचे में कोई बच्चों का डांस का प्रोग्राम हो रहा है तो हर फ्लोर की गैलरी से हर जगह से लोग देख पा रहे हैं। और वो अपने आप में वो हम लोग डांस का मतलब स्टेज पे डांस करने के बजाय, या मुझे कोई अनाउंसमेंट करनी हो तो मैं नीचे में वो सेंटर स्टेज पे आ जाऊंगा माइक अनाउंसमेंट करने के लिए, और सारे लोग हर एक फ्लोर पर रेलिंग पे आ जाए और वो वहीं से हर एक फ्लोर के लोग सुन सकेंगे। जैसे स्टेडियम में कैसे होता है ऊपर ऊपर ऊपर, उस तरीके की चीजें। और इसकी जो क्लासरूम को आप देखेंगे, इसके अंदर में मूवी हॉल बनाए गए हैं, इसके अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लैब बनाए गए हैं, इसके अंदर में ओपन एरिया जिम बनाया गया है। ये आप इसका मूवी हॉल देख रहे हैं। इसके अंदर में ये क्लासरूम की आप देख रहे हैं, जो एमबीए कोर्स का जो क्लासरूम होगा वो किस तरीके का होगा। ये इसका ओपन एरिया जो मैंने जिम कहा था, ये 3rd फ्लोर पर है। ये ओपन खुला और ये 2 तल्ला खुला है पूरा 3rd फ्लोर पर, ताकि ये ओपन एरिया जिम होगा, ठीक है? और ऊपर के सारे फ्लोर जो है वो सिर्फ क्लासरूम्स के फ्लोर है। इन फ्लोर्स पे क्लासरूम है, लेकिन बीच में जो गोल गोल रूम देख रहे हैं वो हडल रूम है। हडल रूम का मतलब कि वैसे रूम जहाँ जीडी करने के लिए या प्रोजेक्ट बनाने के लिए बच्चे लोग मिल करके किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, वैसे गोल गोल हडल रूम बनाए गए हैं बीच बीच में। और चारों तरफ क्लासरूम्स है, जितने भी रूम्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्लासरूम्स है, ठीक है? आपको कोई एक क्लासरूम का इसमें यहाँ पर विजुअल
दिखाई पड़ेगा अंदर का। ये इस तरह के क्लासरूम होंगे। तो ये सिमेज का जो कैंपस बन रहा है उसको आपने देखा, लेकिन सिमेज का जो एक कैंपस जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है उसका मैं चाहूंगा कि विजुअल, आई थिंक वो विजुअल भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। जस्ट ए मोमेंट, जो हमारा कैंपस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मेघा मैम, आपकी फोटो पे वो कैंपस का वीडियो है, पाटलिपुत्र कैंपस का वीडियो? यस सर। जब तक आप वो वीडियो निकालेगी, मैं जरा सा स्पोर्ट्स के बारे में बात करूं। जो बच्चे ने स्पोर्ट्स की बात कही है कि स्पोर्ट्स कैसे हमारे कॉलेज में हो पाएगा, तो स्पोर्ट्स की दिक्कत हमको होती थी, लेकिन फिर भी बिहार में सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट हमने करवाए, इंटर कॉलेज इवेंट्स करवाए, और हमारे बच्चे जो हैं वो बीएचयू में जा करके स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स में और कॉम्पिटिशंस में जीत करके आए। तो वो कैसे हुआ, वो उसकी पूरी कहानी तो मैं भी यहाँ नहीं सुनाऊंगा, लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको एक विजुअल दिखा रहा हूँ कि इसमें आपको स्पोर्ट्स की भी झलक दिखाई पड़ेगी। ये क्लियर, ये दिखाई पड़ रहा है ना? जो आप सिमेज में केवल पढ़ाई ही नहीं, बनेंगे नए दोस्त, दोस्तों का साथ। सिमेज आपके कॉलेज लाइफ का वो पल जो आप कभी नहीं भूलेंगे। सिमेज में केवल पढ़ाई ही नहीं, बनेंगे नए दोस्त, दोस्तों का साथ, उनके साथ बिताए गए पल, वो खेल कूद, कुछ भी तो नहीं भूलने के लायक। ये 3 साल आपकी जिंदगी के वो साल होंगे जो आप याद रखेंगे जिंदगी भर। खेलो जी भर के, सिमेज स्पोर्ट्स क्लब है ना। कुछ और आ रहा है स्क्रीन पे। तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट था कि स्पोर्ट्स जितना सिमेज कॉलेज पटना में करा रहा है उतना शायद ही कोई कॉलेज करा रहा हो, और ये सिमेज कॉलेज की जो नई शाखा है, ये आप देखें। अगर मैं बात करूं संस्थान की शुरुआत की, तो सिमेज की शुरुआत 2009 में हुई थी,
और उसके पूर्व हमारे शैक्षणिक समूह के द्वारा पटना में द करियर कैटलिस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स चलाए जा रहे थे पटना के 2 स्थान पर थे। और उन दोनों ट्रेनिंग सेंटर्स में हम लोग छात्रों को फिनिशिंग स्कूल का एक कॉन्सेप्ट के तहत उनको तैयार करते थे, जो अलग अलग कॉलेजों से बच्चे पढ़ के आते थे। बच्चों को हम लोग जॉब के हिसाब से, और खास तौर पर उस समय भारत में बैंकिंग सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में शुरू हुआ था, उसी समय टेलीकॉम की क्रांति आई थी, और साथ ही साथ उस समय में एक BPO, ITES और कंप्यूटर सेक्टर में, IT सेक्टर में बड़े जॉब अपॉर्चुनिटीज आई थे। हम बच्चों को, दूसरे कॉलेजों के बच्चों को तैयार करते थे, और हमारे मन में हमेशा ये भावना आती थी कि यदि इन छात्रों ये जो अभी आप देख रहे थे, ये सिमेज का जो पाटलिपुत्रा का जो ब्रांच जो है, आप उसकी तस्वीर देखें तो चालू हो चुका है। जो ब्रांच में पहले आपको विजुअल्स दिखा रहा था, वो उस ब्रांच का था जो बन रहा है, लेकिन ये ब्रांच हमारा यहाँ पे सारे वोकेशनल कोर्सेज की पढ़ाई की जाती है। BBA, BCA, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है। सो स्टूडेंट कम हियर फॉर इमेज की है। क्या इस तरह का लैब आपके जिले के किसी कॉलेज में है, पटना के किसी कॉलेज में है? जिस तरह की लाइब्रेरी इमेज में है, जितनी बुक्स इमेज में है, क्या इस तरह से बाकी कॉलेजेस में है? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ एक्स्ट्रा क्या है, बाकी कॉलेजेस से डिफरेंट क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे नंबर्स ऑफ कंपनी आती है यहाँ प्लेसमेंट के लिए। सो यू कैन ऑब्वियसली ट्रस्ट एट दिस इंस्टीट्यूट